don't know like how and where I derive meaning from in my life right now. Professionally, things are going well. Okay. ठीक है? But that doesn't really infuse my life with meaning. So I feel like I'm this existential ocean, and I don't know where to swim, how to swim. मैं क्या करूँ? यार एक्सिस्टेंशियल अगर तुम किसी क्राइसिस में हो तो हाँ. तुम सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम अपना मॉरल या अपना जो अभी तक सो फार Yeah. जो तुम्हारी डेफिनेशन है लाइफ की तो तुम कहाँ से पिकअप कर रहे हो? इज इट ओनली द एनवायरनमेंट? इज इट योर पेरेंट्स? इज इट इस्लाम? इज इट पाकिस्तान? wherever do you lie, right? वो और मैं मतलब अगर सिंपल सेंस में कहूंगा तो जो भी वो चीज है ना, Yeah. ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा रिसर्च कर लो. Okay. ठीक है, उसको जब तुम थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करोगे ना तो अगर तो वो चीज तुम्हें नहीं भाएगी फॉर एग्जाम्पल, Yeah. ठीक है, तो तुम फिर you would want to shift to something else and this chapter will then be closed. Yeah. Right? But on the other hand, if you keep at this and then also keep your mind open about other things, Yeah. तो फिर तुम कंफ्यूज ही रहोगे सारी जिंदगी की यार कि भाई अपने आप चैप्टर्स बंद करने वाला सोचो. इट्स द टाइम इज ठीक है, तुम्हारा करियर वाला टाइम चैप्टर खत्म हो गया. हाँ. ठीक है, हाँ. ग्रेट, सही है. नाउ देयर आर अदर चैप्टर्स दैट यू वांट टू Yeah. perhaps close. हाँ. One may be faith, one may be getting married, Yeah. one may be whatever, right? Yeah. So उन चैप्टर्स पे आप रिसर्च करना शुरू कर दो भाई, जिस तरह हर जिंदगी में यही है. Yeah. सही है, you have to go with action. Without action there is no, how should I put it, there is no success. You will be nothing. मतलब सोचते रहोगे यार अच्छा ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता. No, give your जो भी चीज तुम करना चाह रहे हो उसको डिफाइन करो, उस पर रिसर्च करो. Yeah. और उसके ऊपर एक कंक्लूजन पे पहुंचो फेयर. एंड आई नो यू टू बी थोड़े तुम बायस्ड हो, लेकिन आई नो कि तुम एनालिटिकली इस चीज को सॉल्व कर सकते हो. Yeah. तो तुम उसको डिफाइन कर लो और जहां तुम्हें रेजोनेट कर रहा है वहां पे सच बोलो कि यार अच्छा ये चीज मुझे लगता है Yeah. रेजोनेट मुझसे कर रही है. बेशक वो भगवत गीता में लिखी हुई है या वो किसी एथिस्ट की किताब में लिखी है, वो कुरान में लिखी है, आई डोंट केयर. Yeah. उससे फिर जस्टिस करनी है, क्योंकि हर जगह पे यही बात आएगी कि यार सच बोलो, अच्छा करो, whatever. And host the process of actually arriving at this solution will never happen, but just the way of getting there will keep me engaged. Yeah. Will just keep on creating new challenges. Yeah. Because contentment है, वो मसला नहीं है. But like meaning की search seems a bit like unanchored right now. यार हाँ, क्योंकि Contentment है. क्योंकि it needs to come from a Something. place that's bigger Yeah. than you. Yeah. ठीक है, अगर if it comes from a similar place, ठीक है, तो वही जिस तरह तुम करियर के उस पर पहुंचे हो, तुम Yeah. कह रहे हो यार अच्छा अब what now what? This Yeah. was not it, right? ये Yeah. बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो X नंबर ऑफ पैसों में पहुंचते हैं Yeah. और वो कहते हैं यार this was not it, right? Yeah. So maybe you're at that point. So this is essentially the universe कह लो या Allah, in my case I would say Allah, पर लोग universe कह लो या forces कह लो या energy कह लो, that is calling to you. Yeah. कि यार अच्छा तुमने ये कर लिया, अब सही है, what are you going to do next? Yeah. सही है, and this is अब तुम एक नई जर्नी पे जाने वाले हो, so enjoy करो यार, अब जर्नी शुरू हुई है अभी. Fit, thank you. Thank you. Good evening. My name is Huria. I came here to Pakistan for work. Okay. Yani first it was for work only, but then I found out that yani the nature of Pakistan is very unique. I'm talking here now yani from all my heart. I just want to say and clarify that Pakistan is very beautiful city, and the nature here is fascinating, really. And what I like it here is actually it's a family station too. Yani, I regret so much that I didn't bring my children here with me too. So it's nice weather, nice people too, very hospitality, and yani, to tell you the truth, that this is what I found out yani, personally from all people I met through from being here. Yani, they are very generous people. Very hospitality, very good people, yani good intention, really. I didn't see but the good things here. And I would, after that, because, you know, as I said before, I came here for work, but I was just thinking to change my mind now. And I don't know, I just want to bring my children here. Okay. So my question is, like, how long have you been here so far in Pakistan?
I'm here from the beginning of this year, Okay. and I go back to Jordan, and I come back. يعني I come, I stay here for approximately 2 months, and I back to Jordan, and I come back because of my family, and يعني I'm very thrilled of that. يعني I consider it as a work and as a vacation too. Okay. And so when you were in Jordan, what was the image of Pakistan at that time in your mind before you were coming here? What did you think of Pakistan at that time? I didn't have يعني specific thoughts about Pakistan because I've been traveled before, but not in Pakistan. I also went to Afghanistan, but as يعني as my limited maybe information, it's not far away يعني. Yeah. But those people too are very friendly and very nice hospitality. And I didn't think يعني I would find any يعني challenges here. But I was very thrilled and I was so amazed يعني from everything, the weather, the atmosphere, the people. Really, I'm saying just from all my heart. No, we believe Yeah. you. So have you tried any foods? What's your favorite food for Pakistan? Yes, Like yeah. Any dish that must have blown you away or something? The food. Oh my God. Don't tell me about Pakistani food, please. I became, I think, addicted. You know, I was telling my friend now after I back to Jordan, I don't know what I will do because I tried many foods here. They are all delicious and they are all يعني fantastic. I eat here too much like patatika and mandi, biryani, tikka, like this يعني. Yes. Is there anything else that you would want to add? Anything that you have learned so far? Yes, I just want to thank you for this lovely opportunity, and I would love to speak about Pakistani people here, and I'm so thrilled and overwhelmed to be here, and thank you again for this opportunity. Thank you so much. अच्छा देखिए, हम लोग ना अक्सर बात कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम लोग अक्सर ये भी बात कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को वक्त दिया करें, ठीक है। तो मैं ना बड़े दिनों से ये भी सोच रहा था और एक और चीज मेरे अंदर ना बहुत दिनों से चल रही थी कि ना यार समथिंग वाज लाइक आई वाज फीलिंग एम्प्टी, मतलब कुछ ऐसा फीलर मुझे नहीं आ रहा था कि मैंने कहा यार क्या करना चाहिए। तो अचानक से जो है ना एक आप कह लें कि एक राइटिंग एक पोस्ट मेरी नजरों से गुजरी कि माँ जो है ना वो जन्नत है, ठीक है, और उस जन्नत का जो दरवाजा है वो आपका बाप है, ठीक है। सो अक्सर ये चीज सुनने को मिलती है स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को या लोगों को कि वो अपनी माँ से तो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपना प्यार, लेकिन उनके जो फादर होते हैं ना उनके साथ वो फीलिंग शेयर करने के अंदर ना उनको थोड़ा सा झिझक आ रही होती है। सो आई थॉट, मैंने कहा यार लेट्स ट्राई इट आउट, मैं देखता हूँ कितनी करेज लगती है इसको करने में ना। बिलीव मी, मैं ऑफिस से वापस घर गया, मैंने चेंज किया एंड आई वाज वॉकिंग इनटू माय रूम और मैं इधर उधर मैं जाऊं ना जाऊं वाले सब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। मतलब मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मतलब हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर बात करता है, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट सिंगल पर्सन जिसके साथ मैं बाहर हूँ, जिसके हाथों में मैं खेला हूँ, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है, ठीक है। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात उनसे क्या करूँ ना, कि मतलब मैं क्या आपको बोलूँ कि मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Thank you for all you've done for me. यस, बोलना मैं ये चाहता, बट आई डिडंट नो यार इसको मैंने स्टार्ट कैसे करना है। सो आई वेंट टू हिज रूम, he was sitting, he was watching TV. मैंने उसे कहा बाबा, he looked up at me and I was like, मैं आपको मैं गले लगा सकता हूँ? वो कहते हैं क्यों, खैरियत? मैं कहा मेरा दिल कर रहा है। अब यकीन करें हमजा, ये चीज बोलते हुए मुझे इतनी करेज की जरूरत थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी जुबान से ना मतलब अल्फाज ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वाले साहब, मैंने कहा बाबा मैं आपको गले लगाना चाह रहा हूँ। एंड ही सेड क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है। खड़े हुए वो, मैं जैसे ही उनके पास नजदीक उनके जाता जा रहा था, ज़ारों कतार मेरी आंखों से आंसू शुरू हो गए। आई हग्ड हिम सो टाइट, और मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब मैंने क्या क्या उन्हें बोल दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू डन, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को वो चीजें दूं जो आप लोग डिजर्व करते हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू गाइज। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बाबा कि थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कैन यू बिलीव हमजा कि
he was not letting me go and I was doing the same. मतलब ऐसे लग रहा था कि यार बड़े एयर से बाजू ना एक सीने में, oh gosh, इस सीने में ना लाइक इट वाज यू नो एक ठंडक पड़ गई इस सीने के अंदर ना. एंड जब वो हमारा एक हग खत्म हुआ, he was crying also. ठीक है, and he just slapped me on that, कहते हैं यार ऐसे पागलों वाली बातें मत किया करो and all that. We know that you love us और ये आप सब चीजें हमारे लिए कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें शाहजहां ने ना ताजमहल बनवाया था लेकिन वो मुमताज नहीं देख सकी थी. ठीक है, तो अपने जो है ना, आपके अपनों में सबसे पहले आपके माँ बाप आते हैं. तो यार जब तक वो है ना, उनके साथ वक्त गुजार लें, उनके साथ उनको टाइम दे दें. उनकी मैयत पे उनके पैर चूमने से अच्छा है कि यार आपकी जिंदगी में जो है ना उनके पैर चूम लें. उनके माथे को जब वो उनकी मैयत पड़ी हो, उनकी कब्र पे लिपट के रोने से अच्छा है उनको अभी से यार लिपट के रोना है. ठीक है, खुदा की कसम मैं इस बात का मैं विटनेस हूं कि बहुत ज्यादा करेज लगती है, लेकिन एक दफा आप चले जाएं, अल्लाह की कसम मैं आपको बताऊं हमजा, कल से आई एम फीलिंग सो मच लाइटर देन द बिफोर. ये मतलब ना मुझे लग रहा है यार हाँ अब हर चीज ना अच्छी होने वाली है. ठीक है, एंड माय फादर एंड हम लोग सुबह से बातचीत कर रहे हैं, सब चीजें मुझे लग रहा है यार नाउ इट्स ओके फॉर मी. सो आई जस्ट वांट टू से कि यार एक तो माँ बाप जब तक हैं प्लीज उनके साथ उनको एक दफा बता दें. कल को ऐसा ना हो कि यार आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार आई डिडंट इवन थैंक माय फादर या मदर कि आपने इतना कुछ किया हमारे लिए. ठीक है, सेकेंडली ये कि यार अगर आप किसी को कुछ चीज कीमती देना चाह रहे हैं ना तो अपना वक्त देना शुरू करें. दैट इज आई थिंक द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू कैन गिव टू समबडी. That's so true यार. बड़ी तुम सोच क्या यार बातें हैं. सोच क्या. लिटरली हमजा आप यकीन करें कि आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स कि मैंने कुछ और बात करनी, लेकिन कल का जो ये इंसिडेंट हुआ और कल का जो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इट टोटली चेंज्ड मी यार. मतलब बहुत सारी चीजें ना मेरे अंदर एक दफा टूटी हैं, दोबारा से बनी है, एक नई मोटिवेशन मिली, नई इंस्पिरेशन मिली. और मैंने अपने वाले साहब को एक बात की, मैंने कहा आपकी दाढ़ी में जितने सफेद बाल है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक एक बाल का जो है ना मैं हक अदा करूं. एंड कैन यू बिलीव मी, वो कहते हैं ना उसके रुखसार पे ठहरे आंसू तौबा, हमने शोलों पर मचलती शबनम देखी. सो हिज टीयर्स वर जस्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज बियर्ड, और वो सफेद दाढ़ी के अंदर एक उसका आंसू जो निकल रहा था ना, बस उसके ये आंख से दाढ़ी का जो सफर था ना, उसमें मुझे पूरी जिंदगी मेरी नजर आ गई. ठीक है, so that was a very, you can say, best feeling यार. Beijing. Thank you so much for coming. Thank you Hamza, बहुत शुक्रिया, thank you so much. If you were to take 10 random people from Pakistan, 10 random people, different socio-economic class, whatever, how many of them do you think have mental issues? I think मुझे तो लगता है 50 to 60% minimum. I think it's more. यार 50-60% बहुत ज्यादा है वैसे मुल्क का. अगर तुम आधी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आधी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. नहीं तो आधी पॉपुलेशन में तो 30-40% तो सारे वो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं. तो कुछ ना कुछ मसला है ना. 30-40% मतलब इकोनॉमिक फैनेटिक्स हैं, पैसे के पुजारी और रिलीजियस पुजारी एंड मजे के पुजारी. आप किस कैटेगरी में? जरा मुझे ये यार तो मैं मेरा ख्याल है ये इस किस में डालते हैं. मैं बहुत सारी चीजों का मिक्सचर हूँ, से सारों का पुजारी हूँ, ऐसे कर ले. अच्छा, तो ये आइडिया आपके पास किधर से आया बाहर आउटडोर पॉडकास्ट करने का? यार मैं एक वो वलीद आया था ना, उसकी पॉडकास्ट थी, राइट? हाउ वाज दैट? देखी थी, बड़े मजे की. मेरी यार वो वन ऑफ द फेवरेट है. हाँ, जीनियस बॉय वो, जीनियस. वन ऑफ द फेवरेट है, मैंने उससे खुद बहुत सीखा है. Right? So he was talking about the fact, मुझे नहीं पता, तुझे पता है कि मतलब वलीद, no offense, but तुझे पता है मोटिवेशन स्पीकर थोड़े ऊपर नीचे बातें कर लेते हैं. लाइक बातें उसको, तुझे पता है वलीद को ज्यादा शौक. बोलाना तारिक जमील साहब आगे निकल जाए. उससे एक बात की तो उसे कहते हैं कि यार बगदाद में ही होता था, मुझे नहीं पता ये कितना हिस्टोरिकली करेक्ट है या नहीं, बगदाद में होता था कि जिस तरह हम खाना शाना पाड़ते हैं ना, जैसा तुम्हारे कोका कोला आके, सही है, उसी तरह ना वहां पे, ठीक है, वहां आके तो उधर ये सीन होता था कि उधर वो लोग बैठ जाते थे कपड़ा बिछा के और डिबेट होती थी, क्योंकि टॉलरेंट. So this is sort of a very cheap but a try to revive that, perhaps in front of the camera. नहीं डेफिनेटली यार, ये बैठक बहुत जरूरी है. आई थिंक कॉन्वर्सेशन बहुत यार, एक तो बड़ा मतलब के आई थिंक. और पता है मुझे मैंने एक बात ऑब्जर्वेशन देखी है मैंने, कि मैं जितने भी पॉडकास्ट देखता हूँ ना, बहुत कम लोग हैं. आई मीन ऑब्वियसली आई वोंट प्लग एनीवन, आई वोंट नेम नेम्स, बट बिकॉज वो फिर लाइक्स में आ जाते हो, आई लाइक दैट गाय, आई डोंट लाइक द गाय. बट बहुत सारे जो पॉडकास्टर्स मैंने देखे हैं ना, उनमें जो सबसे जो मेन चीज, जो सबसे कॉमन बात जो मुझे पसंद है कि मतलब कि दे आर
जो कब छोटे लेवल के है ना, they're willing to say stuff which is controversial. Yeah. And the more successful you get as a podcaster, as a YouTuber, as you financially start making money, Yeah. अच्छा फिर ये नहीं कह सकते, Yeah. फिर वो cancel culture और फिर ये cancel culture. तो I feel like ये बैठ के जो common man की बहुत जरूरी होगी. As opposed to अब क्या होता है, हर बंदा अपने स्क्रीन में लगा हुआ है, सारे जो रोगन को देख रहे हैं, सारे Andrew Schultz is my recent favorite one. But one thing I like about him, he's going the other way. He's like, यार, I'm just going to be so flagrant. इसके जो पॉडकास्ट का नाम है कि इतना go out there, तो यार ये बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, करना चाहिए. तो हाँ, तुम बताओ भाई, तुमने भी तो पॉडकास्ट अपनी शुरू करनी है. यार मैंने पॉडकास्ट शुरू करनी है. मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्ट के कुछ 3 महीने के बाद वाजिब कत्ल हो जाऊंगा. ये कहना कि या वाजिब कत्ल हो जाऊंगा. But one of the two will happen. यार it's just I'm passionate about change. I'm passionate about revolutions. Obviously not necessarily bloody ones, but sometimes they have to be. And I'm very passionate about action for the common man. यार मतलब कितनी याशी कर ली हमने जिंदगी में. मैं और आप हुए तो हम तो privileged background से है ना. तो मैं कहता हूँ common बंदा. और मैं अभी लोगों को ये बात बता रहा था कि जब मैं पाकिस्तान 2010 में जब मैं यहाँ पे आया, काम शरफ वगैरह सब कुछ शुरू किया मैंने, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे अंदर ना एम्पैथी आस्ता आस्ता मरती गई. ठीक है, पहली दफा बम ब्लास्ट हुआ पेशावर में, 100 बंदा मरा, पार्ट्स, मतलब 2 दिन में सो नहीं सका कि यार ये हम किधर रह रहे हैं. फिर एक पॉइंट इस टाइम पे आया कि अच्छा 60 बंदा मरा क्वेटा में, अच्छा चलो यार शाम को मूवी देखने चलते हैं. वो बेहिसी मुझे याद है, सो मेरे अंदर भी थी. अब तो वो चीज, मेरा जो एम्पैथी है ना वो खत्म हो रही है. लेकिन रिसेंटली अब तो वो पॉइंट आ गया ना वेयर इवन दो माय लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल इन पाकिस्तान, आई फील लाइक मॉरली I'm at a crossroads where I'm like, do I want to be a part of society जहाँ पे it's okay to steal money, it's okay to be corrupt, or as a matter of fact, it's beneficial to be more corrupt. तो वहाँ पे आके अब मेरा फंस गया है, because I love Pakistan, especially because if you grow up outside Pakistan, you have a very idealistic vision of Pakistan. यार जो मतलब ये जो लोग कहते हैं ना, जो I didn't want to say the political party, but बहुत ज्यादा जो बाहर overseas एक पाकिस्तानी एक चीज सपोर्ट करते हैं ना, they have a very idealistic image of Pakistan. Most of them have never been to Pakistan. वो आते हैं ठग करके 2 हफ्ते गांव में, perfect डॉलर उनके पास कन्वर्जन रेट्स में याशियां करते हैं और वो गायब हो जाते हैं. तो यार ये आपका क्या, very interesting discussion we're having about education reform. इससे पहले यार मेरा तो यही है कि I don't know, you're always in भागने का दिल नहीं करता तुम्हारा? करता है, क्यों नहीं करता? ब्रेन ड्रेन यार दोनों चीजें हैं, पता है क्या, एक तरफ ये है कि मैं तो जाऊंगा तो ब्रेन ड्रेन भी होगा, लुक्स ड्रेन भी होगा, ये तो डबल वैमी. यार आई थिंक मेरे केस में ये है कि पेट्रियोटिज्म है भी और नहीं भी सही है. इट्स ऑलवेज डाउन के हम लोग ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे. बाय द वे हम कह रहे हैं थोड़ी स्टेबिलिटी दे दो, हम काम कर लेंगे, इंक्लूडिंग यू बाय द वे. एंड व्हाइल यू से ऑल योर शिट कि यार बहुत मुश्किल है, ये वो है फलाना, PTSD and all that shit, but you gone good at doing things here. Of course. Ripping all of it away and going to another place जहाँ पे ज्यादा checks and balances हैं, जहाँ पे ज्यादा taxes हैं, जहाँ पे फलाना है, जहाँ पे ज्यादा effort करनी पड़ेगी, all over again is not an easy, जिसे कहते हैं for what. अब मैं ये भी देखता हूँ कि I haven't been to Europe, but बाकी मैंने तकरीबन मुझे आइडिया हो गया क्या चल रहा है, right? हेल्थ एंड एजुकेशन वहां पे दोनों उन जगहों पे ज्यादा अच्छी हैं जहां पे आप अमीर होंगे अगर आप साथ रहते हो, which is same the case here. Listen to me, right? Good neighborhoods have good schools, bad neighborhoods have bad schools. That's the case. ठीक है? अच्छा, रियलिटीज है यार, लोग रह रहे हैं. बात आपकी बिल्कुल सही है ना, लेकिन वो कितना है ना, परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 10% अच्छे स्कूल हैं, जो 70% बैड एजुकेशन है. एक सेकंड, जो साउथ साइड शिकागो में रह रहे हैं वो नेबरहुड्स के नेबरहुड्स हैं जो जिनमें क्राइम है, जिनमें सब कुछ उधर कुछ नहीं हो रहा. मतलब अमेरिका इज प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल यू कैन गिव फॉर सोशल. मतलब आप क्या रहे हो, वो क्या कहते हैं ना, रोल मॉडल, आप मुल्क का रोल मॉडल. अमेरिका इज अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी. लेट्स टॉक अबाउट द यूके देन. तो यूके भी मतलब there are so many other places. मतलब अगर आप यार देखो मेरी बात सुनो, साउथ अमेरिका, despite how much economic warfare that happened on that continent, बहुत बेहतर है. ठीक है, अगर आप यूरोप चले जाओ, अब मिडिल ईस्ट चले जाओ, आप फार ईस्ट चले जाओ. सेकंड, मिडिल ईस्ट आपको मतलब मिडिल ईस्ट अच्छा वाला एरिया, लिटिल टाउन ना, कोई इराक वगैरह को तो उन्होंने सब बर्बाद कर दिया. यार अच्छा, हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा
एक चीज नोटिस की है, हाँ। आपको आपकी टांग खुली हो, ये मैं कनाडा के बंदे से भी पूछ चुका हूँ, हाँ। ये मैं यूएस के बंदे से भी पूछ चुका हूँ, ये मैं ऑस्ट्रेलिया के बंदे से भी पूछ चुका हूँ, ये मैं यूरोप के बंदे से, हाँ। मैंने सबसे पूछ लिया, भाई वेलफेयर स्टेट में मेडिकल जो है ना, अनलेस आपको बहुत सारे पैसे हैं, आप जलील होते हो, ठीक है, फ्री मेडिकल, तो वो नहीं चाहिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, नहीं चाहिए, मैं आपको बताता नहीं हूँ, चाहिए, मैं आपको, क्योंकि मैं यूके में रहा हूँ, तो मैं वहाँ का हेल्थ केयर आपको बताता हूँ, ठीक है। एनएचएस में होती है कलर कोडिंग, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक वगैरह, ठीक है। अब there was unfortunate time my mom was visiting one time and she had a heart attack in my house, ठीक है। My mom's a very healthy woman, ठीक है, तो she was collapsed there and I called the ambulance and within 6 minutes there was an ambulance. The part that was surprising was ambulance से दो बड़ी petite खातूनें निकली ना, तो मैंने कहा कि भाई ये how are they going to manage? तो जब when they got to my mother, they stabilized her and they were wanting to put her on the stretcher to take her to the ambulance. तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा ना, being a good son वाला वो South Asian culture के मैं हाथ बटाता हूँ, तो she said please आप साइड पे हो जाओ, you know, they moved my mom to one side, they put inside, इस तरह किया, ठक कर, and I was like amazed. Within maybe I think 8 minutes we were in the hospital, no waiting, no nothing, ठीक है, and straight to the thing, सारे उनके टेस्ट हुए उनको, and सुबह 6 बजे, ये रात के 9 बजे इंसिडेंट हुआ है, सुबह 6 बजे she was discharged with an appointment for the next day, कि आप आए, डॉक्टर चेक कराए, ये करा। अच्छा सुनिए, आपकी अगर एक सेकंड, एक लेकिन इसका दूसरा बात, ये मेरी वालदा के साथ, फिर मेरा भाई एक दिन टॉयलेट में, सॉरी खलील, ठीक है, उस स्लिप, ठीक है, एंड हिट हिज कॉलर बोन, बैक की जो कॉलर बोन होती है ना, ठीक है, वो बंदा 11 घंटे इमरजेंसी रूम में जलील होता है, क्योंकि दे चेक हिम, वाइटल चेक किए, उन्होंने कहा आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, आप चुप करके बैठ जाए, 11 घंटे बाद उसको देखो। हाँ ना, लेकिन देखो अब तुम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में एम्बुलेंस शायद नहीं पहुंचेगी या कोई हड़ताल हो, आई गेट दैट, राइट, आई गेट दैट, ठीक है, लेकिन डे टू डे मेरी तुम 11 घंटे जाया कर दो, तुम मेरे 24 घंटे जाया कर दो, तुम मुझे कभी बारी ना आने दो यार, कम ऑन। मैंने उस दिन, वो ये भी पॉडकास्ट पे भी आएगा, उस बंदे के पाँव के नाखून में तिनका घुस गया, टूथपिक, ठीक है, they put him on antibiotics for, in Canada by the way, they put him on antibiotics for 2 months. आप जब अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप हमेशा एक्सट्रीम वाले एग्जांपल, नहीं, मैं एक्सट्रीम, मैं ये नहीं कहता हुआ होगा, बट आर यू सीरियसली सेइंग दैट फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ केयर इज वर्स देन, यस, for us privileged 5%ers, भाई मैं, मेरी बात सुनो, एजुकेशन भी बेहतर है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, तो मैंने बेटे अपना डिसीजन लेना ना, मैं ये भाईजन का तो डिसीजन नहीं लेने आया, तुमने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया कि यार ये मेरे लिए नॉन फैक्टर है, मैं फॉर एग्जांपल तुमसे बात एग्री करता हूँ, नॉन फैक्टर सब मेरे लिए ज्यादा बड़ा फैक्टर ये है कि हाँ, गवर्नमेंट में अगर कोई काम करना तो आपको रिश्वतें देनी है और ऑल ऑफ दैट शिट इन बिटवीन, यस, दैट इज ट्रू, बट ऑन द अदर हैंड वही वाली बात है, मैं सोचता हूँ यहाँ से मैंने दुबई जाके शिफ्ट होना है, राइट, सो इफ आई वांट टू ओपन अ स्कूल देयर, दुबई, आई हेट, लिसन टू मी, व्हेन आई वांट टू ओपन अ स्कूल देयर, तो खुद सोचो कि मुझे कितने लाइसेंसेस, कितने फलाना, कितनी इन्वेस्टमेंट, ये वो सब कुछ करना पड़ेगा, एंड देन इट माइट वर्क और नॉट वर्क, यार चल रहा है भाई, मैं क्यों उठ के उसको उखाड़ूं यार। honestly speaking, I think education will definitely be difficult, more difficult for you to start up there, but dude, there's a whole class of people there, especially South Asians, I know, Indians, Bengalis, Pakistanis, Sri Lankans, Afghanis, that will definitely नहीं ना, लेकिन वही ना, उतनी ज्यादा ख्वारी है ना, अभी एक चीज है, उसको मैं सेल बोर्ड कह रहा हूँ, सर ख्वारी है, लेकिन पता बात क्या है, रात के 3 बजे आपकी लोड शेडिंग नहीं है, आपका एसी बंद हो जाता है यार, आपको ये नहीं है कि आपका रोड का एक्सीडेंट हुआ है तो somebody is coming to rip you off, ये नहीं है कि पुलिस आपका somebody, you know, आपके लॉज फॉर एवरीवन, ठीक है, अरबियों के लिए थोड़े कम लॉज होंगे, बट जनरली स्पीकिंग तो एवरीबॉडी वहां जाके भी देखो, यहाँ पे भी अगर आप प्रिविलेज्ड हो ना, बेसिकली काम क्या करना है, प्रिविलेज्ड होना है, हाँ। सही है, काम ये नहीं है कि कौन सा मुल्क बोला, तो वही तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि अब मॉरली मेरे से सवाल पूछा, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, हाँ, तो तुम आपने मेरे से सवाल पूछा, नहीं, तो तुम अपनी सोच को बदलो ना, क्यों सोच को बदलूं, मैं खुश हूं, मैं यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, you're just playing the devil's advocate right now. No, I'm not. नहीं, you don't really truly believe this. I do. अच्छा, I do. That you're happy in a privileged lifestyle and fuck the rest of the people. Bro, I made impartial, unbiased किस्म के comparisons. I've been there. I've looked at places to shift. जैसा मैंने तुम्हें कहा ना, कोसुमई में मैं रह सकता हूँ. Why? Because I saw that place as that place, right? So I've been to Melbourne में shift हो सकता हूँ. कल भेज दो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि मैंने बिल्कुल सब कुछ कहा है, लेकिन मैंने जगहों को जाके देखा है, observe किया है. But why not? Why didn't you say London? Why didn't you say New Because York? I hate London. Exactly, because it's such shit London, life. यार, shit London. हाँ. नहीं, it's the city as well. I mean,
कुछ भी नहीं है यार, बस ठीक है, मतलब आप जाके क्या मंडे टू फ्राइडे काम करो, हाँ फ्राइडे को शेड लाइफ। बार। तो बेसिकली ये सीन है कि जब आप देखते हो कि आप यहाँ का कौन सा प्रिविलेज गो करके वहां पे क्या लेने जा रहे हो, तो मुझे कोई बहुत ओवरली हेवीली अनबैलेंस अभी तक फील नहीं हुआ। मे बी जब मैं सिस्टम से थोड़ी टक्कर लूंगा, मैंने अभी तक सिस्टम से टक्कर नहीं ली, ठीक है, शायद मुझे लगता है कि अगर मैं उससे टक्कर लूंगा तो मैं निकल, ठीक है, लेकिन निकल लो कहना भी बहुत यार बहुत मुश्किल है। टक्कर लेने का बहुत दफा मैंने सोचा, लेकिन टक्कर लेने के लिए नहीं, टक्कर का मतलब है कि यार मतलब मैं किसी सिस्टम के चरण में आ गया ना। नहीं, लेकिन असल में पता है टक्कर लेना ना वो आपके लिए मतलब यार मुझे लगता है कि टक्कर लेने के लिए ना आपको एटलीस्ट 10 से 15 साल की एक पीए काटनी है जहां पे आपने ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरीज नेवर केम अप लाइक ओ आई रोट अ बुक, आई बिकेम फेमस एंड आई एम लाइक नाउ रेवोल्यूशनरी। इट्स ऑलवेज दैट 10-12 साल दैट स्ट्रगल दैट नोबडी एज एन एंटरप्रेन्योर दे ओनली सी यू एट सक्सेसफुल, कितना सक्सेसफुल, दे डोंट सी दैट 10-12 साल। और वो जो स्ट्रगल है ना मेरे लिए वो चीज आई डोंट नो यार, लेकिन मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, मैंने तुम्हें कहा था सॉफ्ट पावर यूज करो ना, नाक जाओ फुल ब्लोन, लेकिन कुछ तो करो ना, ये ऑल और नन कुछ तो करते हैं हम, आई थिंक कुछ हाई लेवल पे लोग करते हैं, बट देन वही बात है ना कि और कर सकते हैं। हाँ तो करें ना, कौन रोक रहा है, लेकिन जो अपने आप के डिजायर्स रोक रहे हैं, नहीं अपनी बसात के हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से वो चीजें भी एक पार्ट पार्सल प्ले कर रही हैं, वो भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में लाया, भेजा, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द होल रिलीजियस स्पिरिचुअल, बट दिस इज माय बिलीफ कि आपको भेजा, आपने इबादत करनी है। अब इबादत का मतलब ये नहीं कि आपने सर जमीन पे घुटना है, आपने एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द सोसाइटी, दैट इज एन इबादत, बिजनेस इज एन इबादत, यू नो, ट्रीटिंग योर फैमिली इज एन ibadat in all of these spheres. And if you're there to do the best, then I think the pursuit of money should be, I think, in priority, maybe third in priority. नहीं यार, अच्छा, परसूट ऑफ मनी की जो बात है ना, वो उसके ऊपर मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे पास वही वाली बात है कि जब आपका जहाज क्रैश कर रहा होता है ना, तो वो कहते हैं पहले बेटे खुद ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर अगलों को पहनाए, सही है। सो इट्स अबाउट द फैक्ट कि व्हाट यू डू विद दैट मनी। इफ यू So, for example, you're an entrepreneur, right? If you're good at making money and you see that the major problem for most people is money, right? तो फिर तुम अपने ethics वहाँ show करा दो ना। हाँ, सही बात है। ठीक है, वहाँ पे show कराओ। इसमें मुझे एक बड़ी funny thing याद आई, Dan Piana, you know about Dan Piana? No. So this is like the 75-80-year-old billionaire, Dan Piana, P-E-N-A. वो मतलब he is like the rudest old man you'll meet, ना? So he was talking about that, na? And he goes, dude, work. You know, make your millions and go save the fucking trees and the orangutans and the pandas and the gorillas and whatever you want to save, whoever you want to save. यार अगर तुम पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हो या तुम अगर उस साइड से आते हैं, तो तब पैसे नहीं चाहिए, तब किसी और के भीख मांग रहे होगे, किसी के साथ डील कर रहे होगे, किसी के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होगे ना, तो भी वो बंदा तुम्हें पैसे देगा। अब इम्मी भी है तो इम्मी भी पैसे यार ना दुखी रहा। अच्छा चल छोड़, ठीक है, but I'm just saying that you need money to finance whatever change that you want to. If you're good at it, if Allah has given you that thing, right, that success, you worked on it, fine, but Allah gave you that success. ना देता फिर क्या कर लेते? लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया and you think you can multiply, तो करो और लोगों की हेल्प कर दो, make it bigger than your own. इसमें क्या मतलब कि आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में तो यही करे, बंदा मेहनत करे, पैसे कमाए, लोगों की हेल्प करे, लेकिन जब वो करे, वैसे करे। मसला ये आता है ना कि जब हम पैसे कमा लेते हैं तो हम कहते हैं कि नया आईफोन जो है ना, वो ज्यादा बेहतर है। आईफोन मेरा अल्लाह का शुक्र है, वो बचा I'm just saying something else. But of course, like मेरे लिए travel है, like I want to spend all my money traveling. मतलब whenever I go into a plane, I don't want to turn right, I want to turn left. You know, I want to go into the first. वो बड़ा famous quotation है. I think a lot of people have heard it. कि every morning I wake up and 50% of me or half of me wants to change the world, and the half of me just wants to go through the day and just enjoy life. You know what I mean? So I think वो struggle हर बंदे की होती है, लेकिन conclusion यही है कि oblivion is bliss. Ignorance and oblivion. Being oblivious and being ignorant is bliss. But when you don't know, you're so much happier. Dumb people have it so easy. Not to say that I'm really intelligent, but I'm just saying कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी awareness है ना, आपकी society किस mode में है, तो आप you're suffering. यार तुम्हें क्यों लगता है कि सोसाइटी का ठेका हम जैसे 2-4 लोगों ने उठाया, वो रब ने उठाया हुआ है यार? तुम अपना काम करो, पर्सपेक्टिव ही ये नहीं है ना। तो बहुत अच्छा है भाई, आज के बाद मैंने नहीं ठेका उठाया। नहीं तुमने ठेका नहीं उठाया, लेकिन तुमने ठेका क्यों उठाया? जो तुम्हारे रेडार सोनार में आते हैं ना, सही है, और उससे ज्यादा जो तुम अपना जितना भी उठा तो यार मैं अपने आसपास ही तो देखता हूँ। हाँ तो फिट करो। नहीं तो बट वही तो अपने आसपास ही तो मुझे पेन नजर आती है ना। तुम्हें जो पेन नजर आती है ना, सही है, तुम क्या सोचते हो? तुम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे होते हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा तुम्हारे पास नौकरी कर रहा है, सुनो, जो तुम्हारे पास नौकरी कर रहा है, तुम सोचो यार उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये तो इसी तरह रह जाएंगे,
इसका बेटा भी वेटर बन जाएगा, सो ऑन सो, इसका कुक का बेटा कुक बनेगा, राइट? यू थिंक तो मैं अबाउट। कर रहा हूँ, अपने लेवल पे कर रहा हूँ। अब हाँ। मसला क्या होता है? हाँ मसला ये नहीं है, मसला जो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन और कंसर्न होता है, कि मैं जब ट्रैफिक लाइट पे रुकता हूँ ना, और मैं देखता हूँ एक बच्चा भीख मांग रहा है, वो बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। हाँ अब मैं पता क्या कहता हूँ, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि यार आप मेरे से 30,000 रुपए हर महीने गवर्नमेंट ले, हाँ। आप मेक श्योर करें कि वो बच्चा स्कूल में जाए। नहीं ना, अब I don't want to be that person responsible. I don't want to be that person responsible to send him to school. नो But I'm willing to pay somebody else to do it. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करो। जरूरी नहीं है कि वही वाला बच्चा जो उस दिन है वो अगले दिन नहीं होगा, समवन एल्स विल नहीं, टेक पर मैं इट्स कह रहा हूँ यार, मतलब आपकी सोसाइटी का, यार गवर्नमेंट करने का काम है ना। भाई गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस लिए बैठी हुई है? यार गवर्नमेंट का कितना बजट है? तुमने कभी सोचा कि उस बजट में तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? खुद कर लो। तुम लोगों पर इस वक्त पाकिस्तानियों के पास ज्यादा पैसे हैं देन द गवर्नमेंट, ये सब एग्री करते हैं? बिल्कुल खुद agree कर लो। करता है। हाँ, नहीं कर रहे ना, तो बस नहीं कर बातें ना तो कौन यार, बैठा है गवर्नमेंट में? तो हम मैं जैसे इसको लोग तो ही नहीं बैठे बोल सकता ना, तो मैं पैसे तो दे सकता हूँ फंड ना। कर देना, मेरे करता को हूँ। फंड कर दो। करता हूँ फंड कर, मैं अपने लेवल पे हर चीज को जो मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, द अल्लाह इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें देने वाला। मतलब मैं उसे एक बंदे को बताया था, कहता तू क्या करता है इस मुल्क के लिए? मैंने कहा 70 एम्प्लॉइज, आई हैव बिल्ड अ बिजनेस दैट Yes. एम्प्लॉयज 70 पीपल, आई हैव बिल्ड अ मिनी इकोनॉमी। या यू नो, मुझे इसका क्रेडिट दो। मैं एफबीआर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर कोविड हो रहा है तो रिलीफ दो, और कहते हैं जो तुम कर सकते हो करो, हमें कुछ ना बोलो। यार तुम गवर्नमेंट से सब डिसअपॉइंटेड है, लेकिन लोगों से तो नहीं है ना। वी वांट टू डू फॉर दीस लोगों पीपल। की से भी हूँ मैं, want to do for नेगेटिव these- हूँ यार। मैं क्यों इतना नेगेटिव? नहीं होना चाहिए इतना नेगेटिव। नहीं यार, But easy- नहीं, but I'm just saying कि it's very difficult. Like I get I hate the fact that we are this pessimistic about our country. I gave scholarships to some children for this school, 100%. ठीक है? और what we saw, like this is a long time back, what we saw is कि उनके पास MacBooks हैं. So now we're thinking कि यार bro, उनके पास क्या नहीं है? MacBooks, ठीक है, और एप्पल वॉच, ये चीजें उनके पास है जिनको हमने 100% स्कॉलरशिप दी हुई है। हम अपने दिमाग में सोचे, हाँ, ठीक है, हम अपने दिमाग में सोचे कि हम हेल्प कर रहे हैं, उधर कुछ और निकल रहा है, राइट? सो ये भी चीज साथ एग्जिस्ट करती है। नाम तो जी आसिम है, बट एवरीवन कॉल्स मी स्पाइडी बिकॉज स्पाइडरमैन का शॉर्ट वो था, और स्पाइडी की एक प्रॉपर स्टोरी है कि हाउ स्पाइडी केम इनटू बीइंग, एंड नाउ इट्स अ वेल नोन नेम एंड वेल नोन। यानी लोगों को असल नाम नहीं पता होता, बट एवरीवन नोज मी बाय स्पाइडी और बाय द नेम ऑफ स्पाइडी। हाँ, तो फिट है। तो क्या करते हो यार तुम? व्हाट्स योर, आई थिंक मैंने तुम्हें गाड़ियों शाड़ियों में सबसे ज्यादा एग्जैक्टली विच होते हुए देखा है। तो क्या सीन है यार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती गाड़ियों की। तो स्पाइडी भी इसी तरह ही बना था, जो स्पाइडर पार्क व्हील्स होता था, parkwheels.com, तो उसके हम सबसे पुराने मेंबर्स में से एक थे। वैसे तो काफी पुराने मेंबर्स हैं, बट मैं जब ये 2006 या 4 में बनी थी, तो उसके साल के बाद मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। उसमें मेरी आईडी स्पाइडरमैन थी। सारों ने पूछा जी आपकी आईडी स्पाइडरमैन क्यों है? हाँ, तो मुझे उस टाइम सीधी सी बात है कोई और आईडी मिल नहीं रही थी, और स्पाइडरमैन की सीडी सामने पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा, So this is a very untold story of Okay. how Spidey came into being. नाइस। एक स्पाइडरमैन की सीडी पड़ी थी सीडीज के जमाने में। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ये बताओ कि कौन सी तुमने गाड़ियां आज से मॉडिफाई की हैं या जो भी सेट सूट किया है उनको? मॉडिफाई तो दोस्तों वगैरह की गाड़ियां हैं। हाँ, बेसिकली हमें इंटरेस्ट है, हमारा ये हिसाब होता है कि कहते नहीं है कि पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो जाता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए। तो यही होता है कि किसी की भी गाड़ी खुली होती है दोस्तों की, सब सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है या इसमें क्या हम खराब और क्या कर सकते हैं। हाँ, बट ये जनरली इंटरेस्ट होता है मैकेनिकल्स का, हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ वो। अब पार्क व्हील्स जो था, दैट बिकेम मोर ऑफ अ होम फॉर अस। सारे मेंबर्स आपस में इस तरह थे कि कोई ना कोई गाड़ियों की वजह से इतना जानना शुरू हो गया, हमने मिलना शुरू किया, एंड दे बिकम मोर ऑफ अ फैमिली। it was like a club in the beginning ना, like वो एक आपस में लोगों की होती थी हाँ। बॉन्डिंग शॉन्डिंग। अब तो सुनील भाई बहुत बड़े हो गए। हाँ, सुनील भाई नहीं, पार्क व्हील्स के जो एक्चुअल फाउंडर थे हनीफ भाई लिब्रा, उनकी वजह से हम सारे मतलब पहले जब वो सुनील भाई से भी पहले के वो थे, हाँ, तो वो उन्होंने ये किया था कि हमें पार्क व्हील्स की छोटी छोटी मीट्स होती थी, इस्लामाबाद चैप्टर, कराची चैप्टर, हाँ, लाहौर चैप्टर। तो उसमें ये हुआ कि जब हम सारे एक दूसरे को आईडी और निक से जानते थे, हाँ, जब असल में मिलना शुरू हुए तो हमें पता चला ये स्पेक्ट्रा है, ये हैश फॉर यू है। तो इस तरह फिर वो करते करते ऐसा दोस्तियां बन गई कि कहते हैं ना जो 7 साल से ज्यादा दोस्ती हो, हाँ, तो ये वो 15 जिंदगी बढ़ गई है। तो 15, 16, 20 साल की दोस्तियां हो गई हैं, नाइस। और बहुत मतलब बॉन्ड बन गए हैं। और पार्क व्हील्स की वजह से फिर ये हुआ था कि काफी लोकल गाड़ियों का बहुत ज्यादा होना शुरू हुआ। अब आप फॉरेन से जाएंगे आपको बाहर की गाड़ियों का बहुत पता चलेगा। लोकल आपके पास जी मेरान है, मेरान में एसी नहीं चल रहा, इसका मैं क्या हल करूंगा?
तो वो आपको पार्क व्हील्स पे मिलता था कि जी मेरान में एसी रेट्रोफिट कैसे होगा. तो तुम्हें डू यू मिस द फोरम टाइम्स ऑफ आई रियली डू. तो इन्होंने क्यों नहीं टर्न वापस क्यों नहीं किया? आई मीन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. पार्क व्हील्स एक्चुअली ग्रोथ, आप कुछ चीजें होती है जो सेंटिमेंटल नहीं ग्रोथ लिहाज से आई थिंक होती हैं. तो पार्क व्हील्स ग्रो करना शुरू हो गया, फिर वो फोरम से ब्लॉग पे आ गया, फिर वो मीट्स जो है वो कार शो में कन्वर्ट हो गए, और फिर इस तरह everything evolved, changed and it grew. But do you think it grew in the right direction? Of course, मतलब अब तो पार्क व्हील्स एक ट्रेडमार्क बन गया है. Yeah, अब तो yeah. पार्क व्हील्स एक Big brand. मतलब इंटरनेशनली नोन हो गया है. Yeah. हाँ. The only I think पाकिस्तानी brand जिसको मैं कहूँगा गाड़ियों में जो number one they essentially. नहीं, he's doing a great job, but I'm just saying कि forums का जो था, आई थिंक कम्युनिकेशन भी अब हो गया. लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, ऑल ऑफ दैट उधर भी बन रहा था जैसे तुम लोगों का भी है व्हाट्सएप ग्रुप वाला. फोरम नहीं, व्हाट्सएप वगैरह से भी फर्क आया है. यू आर एग्जैक्टली राइट. फेसबुक Yeah. वगैरह पे आया, लेकिन जो पार्क व्हील्स के फोरम की चीज थी ना, वो एक अलग दुनिया थी उस टाइम ये होता था कि जी सब कुछ फारिग होके मैंने 7 बजे जी खाना शाना खा के एक बाजमात मैंने बैठना है. अच्छा प्रॉपर. हाँ, सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं. अच्छा. इस्लामाबाद के दूसरे कोने में वो बैठे है, कराची के दूसरे कोने में वो बैठे है, बट हम सारे एक टाइम पे हैं. अभी तो व्हाट्सएप चैट हो रही है ना, उस टाइम एक फोरम्स पे ठक पोस्ट आ रही होती है, चैट सीन था. यानी रिफ्रेश करो, अब उसका रिप्लाई आया. खैर ये पुराने इंटरनेट का भी दौर था, लेकिन वो जो एक चीज थी वो अनडिस्क्राइबेबल है. अच्छा, तो और कोई अच्छी बात कोई है वो? अभी हम 4x4 मतलब जाते हैं, टूरिज्म टूर करते हैं, काफी दोस्त टूर ऑपरेट भी कर रहे हैं. मेक योर ओन ट्रिप्स के नाम से कस्टमाइज 4x4 टूर्स हैं, काफी दोस्त ये भी कर रहे हैं. बट मैं इस चीज पे एम्फसाइज करूंगा कि इको टूरिज्म पे हमारे लोग जहाँ पे जाते हैं वो जगह तबाह कर देते हैं. हाँ, यानी कचरा ना फेंके, हमारी गाड़ियों में ट्रैश बैग होते हैं. तो गाड़ियां भी बहुत अच्छी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए. यस, तो कोशिश हम ये करते हैं कि दूसरों का भी कचरा उठा लें. लोग तो इसमें तौहीन समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार, हम नहीं, काफी सारे मेरे जैसे और लोग हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि कचरा उठा लें या मतलब वो है. लेकिन इस चीज में मैं एम्फसाइज करूंगा कि हम बहुत जल्दी बहुत चीजें तबाह हो रही हैं. चलो, थैंक यू सो मच यार. तुम्हारे? वेल, मैं लाहौर से हूँ. मेरा नाम मोहम्मद अफरोज खान गौरी है. ओके. और बस इंजीनियर हूँ. लेकिन आप तो फिटनेस पे बात करने आए यार मेरे से. हाँ, फिटनेस से बात इसलिए करने आया हूँ क्योंकि बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, वो करते करते मैं इतना फिट हो गया. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन सी फिटनेस है भाई? मुझे भी बताओ, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही बन जाऊं. देखिए ना, बाकी इंजीनियरिंग आजकल ना जरा ज्यादा हिट जा रही है, ठीक है, Okay. लेकिन वो उसके अंदर ना वो मजा नहीं आता हाथों से काम करने का ना. ओके. ये मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है ना, वो जब लोग देखते हैं ना उसको, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए. हाँ. वो बोले हथौड़े चलाता है, ठीक है, गाड़ियां बनाता है, और तो उससे एक फिटनेस आ ही जाती है इंसान. ओके. तो फिटनेस की जर्नी के बारे में ना मैं वैसे सोचता ही हूँ कि हमारे मुल्क में ना बहुत ही कम दी जाती है इस पे ना, फोकस बहुत कम होता है. मतलब कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ ना, मैं वहाँ पे भी लोगों को देखता था, इधर भी लोगों को देखता हूँ. पीपल आर जस्ट ऑन टू कंप्यूटर्स, बुक्स, घर में. बाहर का जो एक प्रॉपर एक फोकस है ना कि हाँ हमने ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, कि वो बिल्कुल है ही नहीं यार. कल्चरल शिफ्ट आ जाएगा इवेंचुअली. बाहर भी बड़ा मतलब रीसेंट कह लो 10-15 साल हुए हैं, इतना कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ. इससे पहले इतना फैनेटिसिज्म नहीं था. लाइक इवन इफ यू सी 90s के हीरोज वगैरह, so they were not buff and six pack and all of that. But then during the 2000s and mid 2000s तक तो वो थोड़ा आना शुरू हुआ है. अब तो है बहुत obsessed है वो, लेकिन हम अभी दूर है यार, हम हमेशा 20 साल पहले होते हैं. It's okay. असल में सीन ये है ना कि आपको, हमें अभी भी लाइक यू सेड के ना बफ होना है, सलमान खान बनना है. हाँ. तो सलमान खान नहीं बनना, ठीक है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली आप अजीब से लगते हैं, ठीक है. आपको सबसे अच्छी चीज जो एक अच्छा इंडिकेटर होगा ना कि आप, वो ये है कि आपकी तोंद ना हो. बिल्कुल, जिसका मेरी है. मैंने अपने वालिद साहब को देखा ना. अब वालिद साहब मेरे जो थे माशाल्लाह से, ही हार्ड वर्कर, ही वर्कड ऑल हिज लाइफ, ठीक है. पर उन्होंने ना, जब मैंने उनसे कहता था ना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरी ना तोंद नहीं होगी, इंस्टेड के ना, अब हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा हो कहने को जाए ना कि हाँ बेटा तू, तेरी तोंद नहीं होगी. हाँ. और ये नहीं, तेरी भी तोंद होनी है, हाँ. ठीक है. हाँ. तो बस कि क्या यार, मतलब कि अभी भी मैं उनको दिखाता हूँ ना वर्कआउट की वीडियोस, तो ही सेज के यार हमने तुझे कोई पहलवान बनाना था, जाके यार CSS करो, ठीक है. तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम जाके जिम के अंदर जाके अपनी डाइट के ऊपर इतने पैसे जाया कर रहे हो, क्या करना. तो बेसिकली ना
इसकी तरफ रुझान ही नहीं है Yeah. पेरेंट्स का शुरू से लेकर ही। Yeah. तो बेसिकली मैं इस चीज को प्रमोट करना चाहता हूँ कि लोगों को ना अपने आप को एक तो अपनी डाइट को जरा कंट्रोल करें, क्यों के अंदर ना के जो है ना चीजें वो जरा यार हमारा कल्चर है खाना, सही है, ये बात अंडरस्टैंड करो, बड़ा मुश्किल काम है ये। और खाना दुनिया तारीफ करती है यार, हमारा तो बहुत मुश्किल है कि आप कहोगे यार नहीं अब हम बिरयानी नहीं खाएंगे या हम कढ़ाइयाँ नहीं पाड़ेंगे, मुश्किल काम है यार, आसान सा कोई चीज बताओ। रोटी छोटी खानी चाहिए। हाँ। ठीक है, आजकल वो हमदा भट्टी भी बड़ा फेमस हुआ है माशाल्लाह से, तो वो भी हमें बता रहा होता है कि यार ये खाओ वो खाओ, तो बंदे का दिल करता है और बंदा खाता भी है। मैं भी पहले चीनी वाले पराठे खाता था। वाह, चूरी। हाँ, चूरी तो रहने दें, चीनी वाले पराठे भी अच्छा, खाता था उफ। और सुबह शाम खाता था, तो 6 खाता था। एक बार मैं दावत में गया तो मैं 12 समोसे ही खा गया, ठीक है, एक साथ ही। तो वो मेरे रिलेटिव्स भी कहते थे यार ये बच्चा, So you were really fat at one I point? was. What's your journey like? What was your top and where are you now? Alright, तो पहले मैं अराउंड इसी मेरा BMI जो है उसके मुताबिक आई शुड बी फ्रॉम 68 to 68 किलोज, मेरी ये रेंज होनी चाहिए। पर इस जॉब से पहले आई वाज फिट इन द यूनिवर्सिटी, बट मैक्सिमम आई वेंट टू 85 किलोज टू 90 किलोज तक चला गया था इस डेस्क जॉब की वजह से। Okay. आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट। Okay. तो आई स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड, मतलब कि ठीक है, Lazy आई डोंट वांट टू बॉडी शेम पीपल, इट्स अ जर्नी फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अब आप मोटे हो गए तो बस, या आपको हाँ। मसला हो गया, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल रीजंस भी सुन रहे होते हो हैं, तुम? तो वन पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। पर मेरी मोटिवेशन ये थी यार कि सम थोड़ा सा ना ये वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा, पता नहीं। करो यार, तुम हाँ। देखो ये जब भी कोई बंदा मेरे से गेस्ट इस तरह बात करते हैं तो मैं उससे कहता है यार देखो, हाँ, तुमने अपनी कबर में जाना है और मैंने अपनी कबर में जाना है, सही तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सर है, मेरे सर नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन promote तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या लोगों के सामने रखूंगा, अच्छा। लोगों की डिसीजन है वो, बस उनका सही मसला है, है। तो आई से कि यार लोग कहते हैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है यार, खाने दे यार, कोई मसला नहीं। मैंने कहा यार देखो, जब आप शादी करते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू बी अट्रैक्टिव फॉर योर स्पाउस, राइट? अब आपको आपका स्पाउस नहीं कहेगा, ठीक है, कि वो नहीं कहेगा, हाँ, वो नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी उसकी फिर भी अनकही को सुनो, उसकी सुन लो, ठीक है, वो आपके साथ मूवी देखने जाता है हाँ। या जाती है, हाँ। ठीक है, दे लुक एट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, Yeah. it isn't, at least for me, it isn't a nice feeling, ठीक है, कि यार मतलब कि ऋतिक रोशन looks good, Yeah, I obviously. should look good in my own skin as well. Yeah. इस हवाले से वैसे मैं केविन हार्ट भाई की ना बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, इवन दो ही इज अ वेरी शॉर्ट ऑफ हाइट, ठीक है, उसकी बीवी उससे बड़ी लंबी है, पर वो जब आता है ना क्रिस वो द रॉक के साथ आता है, हाँ। ठीक है, और वो कहते हैं कि यार दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट हाँ। आई हैव अचीव्ड, एंड ही फील्स गुड अबाउट इट, Yeah. एंड हिज वाइफ इज रियली हैप्पी। Yeah, yeah. Our wives are happy, our men are also happy, but I don't know how they are happy. Why is it a tongue-in-cheek comment यार? क्या मतलब, लोग खुश है यार एक दूसरे के साथ? नहीं यार, देखो ये इतना आसान नहीं है, Yeah. ठीक है, what you're saying. मैं तो सारी जिंदगी वेट से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मैंने 6 months से जिम ज्वाइन किया हुआ है। I've lost very about 15-16 kgs, बट ये पहले भी हुआ है, ठीक है। मोटापा एक डिजीज की तरह है, ठीक है, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं होता, सही है। यस, लाइफस्टाइल एंड फिटनेस एंड डाइट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बट कुछ लोगों पे जल्दी चढ़ता है, कुछ लोगों पे लेट चढ़ता है, ठीक है। सो आई थिंक जब मैंने जिम 6 months से जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, बिकॉज आई वाज अ वेरी लेजी पर्सन एंड ये वो, और मैं तो, आप तो 80-90 पे हो बेटे, मैं 127 से आ रहा हूँ, सही है, आराम से, ठीक है। तो जो उसमें मैंने डिफरेंस देखा है ना, वो ये देखा है कि आई एम मोर एक्टिव, मोर फोकस्ड, एनर्जी एंड दैट आल्सो अ लॉट ऑफ मूड की जो है ना बेहतरी, लाइक लॉन्गर रन में, ठीक है, जो मैंने अपने नोटिस की, क्योंकि मैं ऐसे कह लो कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इन चेक रखने की कोशिश करता हूँ। तो आई सॉ दैट आई वाज मच मोर एक्शन फोकस्ड देन अगर आप बस टीवी पे बैठे हो, ऑल ऑफ दैट, राइट? बिल्कुल तो तुम्हें ऐसी कोई चीज फील हुई है? बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि यार एक फेज आता है, मैं जब जीसी में था ना, हाँ। तो मेरे एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि यार अभी तुम लोगों का वो फेज है कि ना तुम लड़कियों के ना पीछे भाग रहे हो, ठीक है, और तुम कहते हो कि यार ये पट जाए वो पट जाए, ठीक है, फिर एक फेज आएगा कि ना यू विल हैव ऑल द ऑप्शन, Yeah. बट टू गेट टू दैट फेज यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और हम जब ऑनलाइन भी देखते हैं, ठीक है, किसी सियाने से सुनते भी हैं, तो
अब देखें, वी कांट चेंज आवर पेरेंट्स, वी कांट चेंज आवर जीनियोलॉजी, वी कैन वर्क विद इट। Yes, yeah. और आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं यार मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, तो बस मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। पर मेरे ख्याल से अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है ना, तो मुझे खुद फील होता है, जब से मैंने ये वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, आई स्टार्टेड रनिंग फॉर पहले 1 किलोमीटर भागा, फिर 2 किलोमीटर भागा, फिर 10 किलोमीटर भागा, फिर 36 किलोमीटर भागा, ठीक है, और फिर मैं आके घर रोया, ठीक है, मैं 36 किलोमीटर के साथ दौड़ा इधर G11 से ना, दौड़ता हुआ मैं मार्गला ट्रेल 5 के ना एंट्रेंस पे गया, ठीक है, और वहां से फिर मार्गला ट्रेल 5 पहले कभी नहीं गया मैं, ट्रेल 5 सारी चढ़ ली मैंने। उसके बाद मैं मगरिब के टाइम वहां से पैदल दौड़ के आया, Right. और हाँ, वापस आके मैं घर में आके ना रो रहा था कि मैंने क्या हरकत की। Obsession हो गया थोड़ा सा, हाँ। ठंड थी, लेकिन उसके बाद आई फेल्ट दिस इमेंस बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, और आई स्टार्टेड फीलिंग कि दुनिया ही बदल गई, Yeah, yeah. पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग, पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग इंस्पायर्ड, और मेरी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मैं काम के अंदर पहले अगर जाता था तो मैं सुबह सो रहा होता था, पता नहीं यार क्यों आ गया मैं यहाँ पे, बट अब आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं कहता हूँ यार आई एम जस्ट बिल्डिंग माय ओन सेल्फ, प्लस आप खुशी लोग ढूंढते हैं, ठीक है, एवरीवन इन सम वे Pursuit of happiness. हैप्पीनेस, यस। तो उस हवाले से जो सबसे इजी स्टेप है ना उसका, वो ये है कि आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स पॉइंट्स के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। वर्कआउट के साथ वो बहुत ज्यादा आता है। Yes, that's so true. That's so बिल्कुल। true. मैंने जब शुरू किया था तो वो मेरे उसने ट्रेनर है मुझे कहा कि चलो भाई पुशअप निकालो। मैंने कहा क्या मतलब? हाँ, मैं 127 था उसमें। उसने कहा निकालो। मैंने एक निकाला और फ्लैट हो गया। हाँ, But 3 months later, I saw myself doing 30, 40, 50, which was like, यार मैं भी कर सकता हूँ, बड़ी बात है, मतलब, you know, so even though I'm, मतलब अभी भी मैं कुछ slack off कर जाता हूँ बीच में, ऐसी बात नहीं है, but I've made gym a very regular sort of a thing and sort of helps with the routine, keeps you negative भी नहीं आप होते, psychologically dopamine release कह लो या जो भी, you have something to look forward to and you're building something, like what's bit by bit आपकी body में हल्के हल्के changes आते हैं, आप देखते हो, आप समझते हो कि अच्छा यार ठीक है। मेरे लिए पार्टनर कहता नहीं है बिकॉज माई पार्टनर, जैसा तुम कह रहे हो, बट माई पार्टनर लव्स मी फॉर ऑल द फजीनेस दैट आई हैव, बट बल्कि जब मैं अब थोड़ा फिट होना शुरू हुआ तो उससे मुझे कहा यार क्या मतलब, ठीक है, तो यू गेट वाला चाहिए। मुझे वो वाला चाहिए, ये सख्त हो रहे हो तुम, ठीक है, अभी ऑल्दो इतना नहीं हुआ लेकिन, सो मतलब कहने का मकसद ये है कि किसी और के लिए कुछ भी करने से बेहतर है कि अपने लिए कर लो, बिल्कुल, ठीक है। Don't put it on partners, don't put it on parents, don't put it on anything else, put it on yourself. It's good for you, it's good for your body. If you take care of your body take care of you. It's very simple, ठीक है। और वो करते रहना है, it's a lifetime journey, right? Yeah. सही है। अब और उसके साथ जो बहुत बड़ी चीज है जो लोग नहीं समझते कि यार अच्छा, सो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि डाइट इज 80% वेट लॉस, राइट? डाइट करोगे तो वेट लॉस होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज अ ट्रू थिंग। बट मैं ये कहता हूँ कि आप जिम करोगे ना, सही है, इफ यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो वेट लॉस ऑटोमेटिक डाइट ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि तुम कहोगे कि यार अच्छा मैंने करना है, आई एम गेटिंग बेटर एट इट, सो स्लोली तुम डाइट को कहोगे अच्छा मैं ये नहीं खाता, मैं इतना, यू नो, यू स्टार्ट सीइंग दोस कैलोरी नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो फिर आइसोलेशन में नहीं हो रहा होता। आप हल्के हल्के करके देखते हो, आप जिम में लोगों को देखते हो वो फिट है, ये वो, यू आर इनटू दैट एनवायरनमेंट। सो मेरे हिसाब से जो मैंने पहली दफा चीज देखी हुई थी कि यार go to the gym first, think about diet later, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, and only do that diet that you're comfortable, उसमें मारो cheat days, कोई मसला नहीं। चीट डेज का आई वुड से कि चीट डेज के लिए ना सबसे अच्छे डेज वो होते हैं जब आप किसी अपने लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ जाओ ना, तो फिर आप रज के खाओ, ठीक है, आप कढ़ाइयाँ खाओ, जो मर्जी खाओ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा यू जस्ट फॉलो योर ओन स्ट्रगल, योर स्ट्राइव, ठीक है, आप अपने ग्राइंड को करते रहो। अच्छा, जिम वाली बात के हवाले से ना मुझे ये एक चीज समझ आती है कि ना हमारे बहुत सारे लोग इस बात को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो कहते हैं यार 3 से 4-5 हज़ार रुपये हम लगाएं, जिम की मेंबरशिप लें, फिर वहां तक जाएं, फिर यार बड़ा रोला है यार, ठंड के अंदर बंदा उठ के किस तरह करे, ठीक है, गर्मी के अंदर भी क्या है यार, ये तो रहने देते हैं। पार्क्स, हमारे पार्क्स बने हुए हैं पर उनको प्रॉपर्ली यूज ही नहीं करते लोग। तो उस हवाले से मैं बस बताना चाहता था कि उसका भी एक रास्ता है जो कि हम लोगों ने बड़ा कम एक्सप्लोर किया, कि लोगों को ना बेसिकली बॉडी वेट ट्रेनिंग के हवाले से बहुत कम नॉलेज है।
और लोग उसको परस्यू करते हैं बट फिर वो छोड़ देते हैं। तो एक फील्ड ऑफ वर्किंग आउट है, उसको कहते हैं कैलिस्थेनिक्स या बॉडी वेट ट्रेनिंग, और उसका बेसिकली ना पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रुझान आने लग गया है, जस्ट लाइक यू सेड कि अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आ रहा है लोगों को। लेकिन वो एक चीज का बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है कि यू कैन वर्क आउट फ्रॉम एनीवेयर। यार मसला उसका ये सिर्फ ये आता है कि घर में नहीं हो सकता ना। अच्छा, ठीक है, घर का प्रॉब्लम ये आता है। मैंने भी जो अपने इन दिस जस्ट माय ओपिनियन, मैंने अपने घर में पूरा जिम बनाने की भी कोशिश की थी या व्हाटएवर, बट होता ये कि वो रेगुलरिटी नहीं आती। दिस गोइंग टू द जिम लाइक वर्क, कि बस अब जाना है और करना है और पैसे थोड़े डाले हुए हैं। यार 5,000 जहाँ खाड़ी के सूट पे लग जाते हैं ना ब्रो, तो फिर अपने पे भी लग सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मैकडॉनल्ड्स की मील 1,000 रुपए की है या 700-800 रुपए की है, व्हाटएवर। वी लिविंग इन अ टाइम जो मतलब आप और बहुत ऑल फजूल लोगों चीजों पे भी खर्च कर रहे होते हैं, और आप अगर इस पे खर्च कर लेंगे तो आप शायद उन चीजों पे कम स्पेंड करें। देयर आर सम एसेंशियल्स, राइट? ये मैंने अपने अंदर नोटिस किया कि यार देखो, जाओ, गेट आउट ऑफ योर होम, गो देयर, सी पीपल डू थिंग्स एज वेल ना, वो बहुत जरूरी है। आप लगा लो टीवी, मैंने वो बॉडी कोच टीवी बहुत देर की है, सही है, बट रूटीन नहीं बनता यार। अच्छा, मतलब यू नो, आप 2 दिन करोगे फिर कहोगे घर ही है ना, बाद में कर लेंगे, अच्छा शाम को कर लेंगे, अच्छा दिन ये वो हो जाएगा, यू नो। वहां पे आपका टाइम होता है, आपने एक टाइम निकाला हुआ है, आपने उस टाइम में जाना है, जिम करना है। So for me that works more better. Everyone has their own motivation and their way. मतलब कुछ लोग कहते हैं हम जिम में जाके ना वो सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी साथ कर रहे हैं, साथ म्यूजिक लगा रहे हैं, साथ कुछ वेट। तो माहौल का सीन होता है ना, माहौल का सीन, माहौल जरूरी है। माहौल वाकई जरूरी है। वही मोटिवेशन की बात है। मैं असल में उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा था जिनके पास वो 5,000 भी नहीं, तो वो बेचारे नहीं जाते, ठीक है, या YouTube भरा हुआ है यार, YouTube पे इतने वर्कआउट वीडियोस हैं, किसी को भी फॉलो कर लो यार। इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट यू नो सोच, तो निकल आते हैं रास्ते। अब तो फ्री में मिल रहे हैं वर्कआउट, जितने मर्जी करो, और एप्स में ढूंढो। हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं ना, जो कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा ना हम बच्चे को पढ़ा लें और वो डिग्री कर ले, और हाँ एक सबसे बड़ा हिंडरिंग पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं अब जब हमें टीन्स में होते हैं ना और 20s तक हम अपना टाइम गुजारते हैं, उस वक्त लोग कहते हैं यार नहीं यार ये एक्सरसाइज करेगा, वेट उठाएगा, इसकी हाइट रुक जाएगी। अच्छा मतलब कि नहीं वो तो होगा। जब आपने बढ़ना है ना, देन दे डोंट मेक यू वर्क आउट बिकॉज़ आपकी हाइट रुक जाएगी। फिर जब आपकी हाइट रुक जाती है ना असल में फिर वो कहते हैं अच्छा वर्कआउट, और वो कहते हैं नहीं भाई अब हमने नहीं करना, हमारी आदत बन गई, हमने नहीं करना वर्कआउट। यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर गिविंग आउट योर टाइम, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे फिर बात। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आमिर इशफाक है और ट्रेनिंग्स में मुझे ऑलमोस्ट कोई 14 to 15 इयर्स हो चुके हैं इसमें। राइट नाउ एक प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान फैमिली तकाफुल कंपनी, उसमें ऑपरेशंस को हेड कर रहा हूँ नॉर्थ एरिया के अंदर उसमें, और दिस इज ऑल अबाउट मी, सिंपल। ओके, सो आज आप आए हैं मेरे साथ बैठने, तो क्या आपने बात करनी है? व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल? देखिए मेरे चीजें तो बहुत सारी हैं, टॉपिक बहुत सारे थे इसमें, पर लेकिन पर्टिकुलरली मेरे लाइफ में और मेरी इंडस्ट्री में जो चीज इस टाइम मैं फेस कर रहा हूँ बेसिकली पॉजिटिवली एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव वाइब्स हैं ये हमारी कामयाबी में, सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती हैं। तो इसके ऊपर डेफिनेटली मैं डिस्कस करना चाह रहा था उसमें। तो पॉजिटिव वाइब्स को जज किस तरह करेंगे? आई मीन कुछ जगह होती हैं जिसके अंदर ऐसा कभी कभी फील होता है, बट साइंटिफिक शायद इसको नहीं लोग कहेंगे, इट्स जस्ट अ फीलिंग, राइट? या तो कैसे हम जज करेंगे हम एक ऐसी जगह पे हैं जो पॉजिटिव वाइब्स दे रही है और जो कोई नेगेटिव वाइब्स है? कोई टेल साइंस है, कुछ है ऐसा? लेट डिस्कस विद एन एग्जांपल। कि आप दो लोगों से मिलते हैं, एक पहला शख्स है जो कि बेसिकली आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है, उसमें वो आपको ये बताता है कि मैंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, मैंने बहुत मुश्किल और टफ टाइम भी देखा है उसमें, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी अचीवमेंट को फोकस किया, मैंने अपने गोल्स को अचीव किया, और वो आपको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि स्ट्रगल्स लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन आपने अपनी चीजों को फोकस करके जो है वो चलते रहना।
ऑन द अदर हैंड एक ऐसा शख्स है जो कि आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में जब बात करता है तो बेसिकली आपको मॉरली डाउन करता है Okay. ठीक है Okay. वो जब भी लाइफ को देखता है तो वो लाइफ को इस तरह देखता है कि वो नेगेटिव जो चीजें हैं Okay. वो उसको हाईलाइट कर रहा होता है उसमें, ठीक है। उसको सुनने के बाद आपको थोड़ी देर बाद ये फील होता है कि यार मुझे लगता है कि शायद मैं भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या अगर मैं कुछ करने जाऊंगा लाइफ के अंदर तो शायद मुझे भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और मैं भी शायद जो है वो लाइफ में इतना कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, अब मैं नेगेटिव थॉट्स के हवाले से मैं एक आपके एग्जांपल कोट करता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बयान करता हूँ कि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट मतलब इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें। एक शख्स था, उसके पास बेसिकली एक डॉग था, उसमें उस डॉग के अंदर आप ये कह लें कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ये बात थी कि वो पानी के ऊपर चलता था, स्विम नहीं करता था, ठीक है। अच्छा, जब उसको ये क्वालिटी अपने डॉग की पता लगी तो उसने ये सोचा कि चलो यार मैं अपने एक दोस्त को इनवाइट करता हूँ और उसको ये क्वालिटी दिखाता हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे डॉग के अंदर जब ये क्वालिटी देखेगा तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा। अच्छा, अब जब उसने इनवाइट किया अपने दोस्त को तो वो दोनों शिकार पे चले गए। सारा दिन वो हंटिंग करते रहे और डॉग जो है वो दौड़ के जाता था पानी के ऊपर और पानी से वो बतख उठा के ले आता था उसमें। सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब वो जो दोस्त है वो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये मतलब इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक चीज सामने आ रही है, लेकिन ये शख्स जो है वो उसको बिल्कुल क्यों नहीं मतलब इस पे बात क्यों नहीं कर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब वो मे भी उसने कहा कि शायद ये बाद में बात करेगा। शाम को जब वो वापस जाने लगे तो रास्ते में जाते हुए उसने वैसे ही अपने दोस्त से पूछा कि यार तुमने मेरे डॉग में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज जो है वो देखी है? तो उसने कहा यार हाँ, मैंने एक चीज नोट की है। जो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मे भी इसने इसको ऑब्जर्व किया हो लेकिन अब डिस्कस करना चाह रहा उसमें। तो उसने कहा हाँ यार, तुम्हारे डॉग में एक खामी है। अच्छा, वो खामी ये है कि बेसिकली ये जो है वो स्विम नहीं कर सकता। अच्छा 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 अब इसको कंक्लूड ये करें कि वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, लेकिन बजाय वो पॉजिटिव चीजों को या लाइफ के पॉजिटिव पहलू को देखने के वो नेगेटिव चीज को हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी को मैं एक और चीज मैं आपको कोड करता हूँ उसमें। देखिए, एक डॉक्टर को इनवाइट किया गया एक जगह पर। वो बेसिकली एक ऐसा वेलफेयर ट्रस्टी इदारा था जो कि ये जो लोग नशा करते हैं वो उनको ठीक करता था। तो डॉक्टर को इनवाइट किया गया कि आपको इस तरह डेमोन्स्ट्रेट करें या इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन दें कि ये जो लोग हैं ये नशे से नफरत करना शुरू कर। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसने क्या किया कि सबको एक हॉल में ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया और उसने एक बोतल के अंदर पानी था और दूसरी बोतल के अंदर एक विस्की थी। उसने एक कीड़ा निकाला और निकाल के उसने पानी के अंदर डाला तो वो पानी के ऊपर स्विम करना शुरू कर दिया। उसने दूसरा कीड़ा निकाला और उसने विस्की की बोतल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो थोड़ी देर बाद वो उसमें तहलील हो गया वो कीड़ा। तो बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा था कि ये जब आप विस्की पीते हैं या आप ये ड्रिंक करते हैं तो ये बेसिकली आपके जो बॉडी के लिए जो है वो बहुत डेंजरस है, मुजरे से है उसमें। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह की कोई बात आएगी दरमियान में। तो एक बंदा खड़ा हुआ तो उसने कहा कि जी मैं मतलब एक चीज इस पे कहना चाहूंगा। तो वो बड़ा खुश हो, उसने कहा जब बताएं क्या क्या कहें। उसने कहा जी मुझे ये पता चला है कि इस जो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अल्कोहल पीने से पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। तो वो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। सो नेगेटिव जो लोग होते हैं वो कभी भी जब खुद वो नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि वो लाइफ के किसी भी पहलू को पॉजिटिवली देख रहे होंगे उसमें। यहाँ पर तो मेरा ये सवाल है कि बड़े सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और आप उनका कुछ कर नहीं सकते एसेंशियली, लाइक कि वो आपके कोई करीबी फैमिली मेंबर हैं या कोई मतलब ऐसा बंदा है जो फॉर एग्जांपल आपको उससे रोज का पाला पड़ता है, तो ऑब्वियसली देयर नेगेटिविटी सॉर्ट ऑफ रब्स ऑफ ऑन यू एज वेल। तब क्या करें? अब मतलब हर जगह तो नहीं हो सकता कि आप एस्केप कर लें। आपके घर बड़ी दफा माँ बाप लेट एज में काफी नेगेटिव हो चुके होते हैं या टीवी देख देख के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो कैसे बंदा उनसे छुटकारा तो नहीं पा सकता? इंटरेस्टिंग। देखिए, अच्छा सवाल है आपका। इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि देखें, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके बच्चे या आपके वो जो लोग हैं वो मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो किस जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। मैं इसकी एक मिसाल आपको अपनी फैमिली की एक दे सकता हूँ उसमें कि बच्चे जो हैं वो आजकल जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं।
पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि वो बच्चे रूम में बैठे हुए या किसी दूसरी जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं उसमें। हमें ये लगेगा कि शायद वो अपना जो टाइम है किसी ऐसी जगह पे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। लेकिन सोशल सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट अभी आया ना, ठीक है चलें, उससे पहले भी तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि लोग तो किसी भी चीज को लेके नेगेटिव हो सकते हैं। पहले तो इंसान नेगेटिव कर देते थे दूसरे इंसान को, मतलब कि अगर मैं आपसे अभी बैठ के कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करना शुरू कर दूं और आप घंटा सुनते रहे मुझे, तो उसके बाद आप भी कहेंगे यार दुनिया सारी बुरी है और ये वो, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी, राइट? मेरा ये सवाल है कि सोशल मीडिया तो इट्स वन ऑफ द थिंग, एक एलिमेंट है, लेकिन people have become negative. Can we take them out of that negativity? Is that possible? देखिए जैसे हमारी लाइफ के अंदर नेकी और बदी जो है ये साथ साथ चलती है, इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिविटी जो है ये हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें। अगर मैं ये कहूँ कि नेगेटिव लोगों को हम लोग बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी हो नहीं सकता उसमें। अगर बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको एक बंदा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है और वो कंटिन्यूसली आपको लगता है कि आपके मोरल को डाउन कर रहा है उसमें, तो बेटर पार्ट ये है कि स्टे अवे फ्रॉम दैट पीपल, कि कीप द डिस्टेंस, और बेहतर है कि आप ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट, जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है उसमें, तो बजाय आप उसमें इन्वॉल्व होने के, एक दिन ये आएगा कि आप अपनी लाइफ को उसकी नजर से देखना शुरू कर देंगे। ये बात आप सही। तो बेहतर है कि हम लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लें और हम अपना फोकस अपने गोल्स पे रखें और हम उन लोगों से ज्यादा करीब हो जाएं जो बेसिकली हमें एनकरेज कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये होगी कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, हमें जिंदगी खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाएगी और हमें लगेगा कि हम लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब भी हो सकते हैं, अचीवमेंट भी कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you. It's a lovely conversation. And inshallah हम कोई बड़ा सेशन भी रखेंगे। Sure. Thank you. Thank you. काजी भाई बताएं यार, आप देखें you are the pulse of I8. Pulse of I8. ठीक है, आप जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ पे आइडियाज और डिस्कशंस और पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें आई एम श्योर डिस्कस होती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या सीखा आपने? सर मेरा तो सबसे पहला, आपको मैं अगर मंशूर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं उन लोगों में से था कि अगर आपने रेवोल्यूशन लानी है ना, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी में वो आती है पब से, बाहर से, उन जगहों से, हाँ ठीक है, और क्योंकि पाकिस्तान में और इन जगहों के ऊपर आपके कल्चर ही नहीं है पब से बाहर से, तो आपके पास यहाँ पे किधर से आती है, चाय की जगहों से और ढाबे से। तो अब बेसिकली सिलसिला ये है कि आप लोगों को ना बोलना, समझना, उसको हम कैसे फ्रेज करें, उसको हम फ्रेज इस तरीके से करते हैं कि यार आजकल का जो लड़का है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चीजों के अंदर फंसा हुआ है। वो क्या है? बच्ची, गाड़ी, क्रिकेट या फुटबॉल। उनके पास इन 3 चीजों के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है बात नहीं यार, यहाँ पे लड़के हैं जो काम भी करते हैं, काम को मैं ऐसा कहूंगा कि यार काम लोग अपनी खुशी से नहीं करते, अपनी मजबूरी से करते हैं। ठीक है, आप जो मेरे को पॉडकास्ट करो, प्रॉबेबली ये आपकी खुशी आप कर सकते हो, ये बात आपकी सही। ठीक है, ये मजबूरी, अगर आप मजबूरी में कर रहे होते ना, तो यू वुड नॉट बी दैट इन्वेस्टेड इन इट। आई थिंक अगर मैं मजबूरी में कर रहा होता तो आई माइट बी मेकिंग सम डिफरेंट डिसीजंस, ऐसे कह सकते हो कि मैं व्यूज के लिए कर रहा होता, मैं कोई कंट्रोवर्शियल अटैक करता, मैं भागता दौड़ता, राइट? तो मेरा ये मानना है कि लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ठीक है, वो या तो कोई काम कर रहे हैं और काम के बारे में बात करेंगे ना, वो अपनी मजबूरी के तहत बात करेंगे, ठीक है, दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स कि यार हम कौन सी चीज बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब कभी भी मैं किसी चाय की दुकान पे बैठता हूँ या कुछ चीज में कहता हूँ यार बात सुनो, मैंने गाड़ी की बात नहीं करनी, मैंने फुटबॉल की बात नहीं करनी, मैंने क्रिकेट की बात नहीं करनी, मैंने बच्ची की बात नहीं करनी, मैंने तो बात करनी है कि यार मैं तुम्हें एक इलाका देता हूँ, उस इलाके को कैसे बेहतर करोगे, या मैं तुम्हें कुछ सिनेरियो देता हूँ तो तुम उस सिनेरियो को कैसे बेहतर करोगे, ठीक है। तो अब उसमें कई सिनेरियो ऐसे थे कि जिसके अंदर हमने कहा कि अलग से आपने पानी की रिसोर्सेज बेहतर करनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा मसला आने वाला है पाकिस्तान के अंदर इन लेट्स से कमिंग फ्यूचर के। यार आपके पास एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं होगा, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा,
तो आप उस मसले को कैसे सॉल्व करोगे? तो जो ढाबे पे बैठे बॉयज अपनी जिंदगी से तंग वहां आए हैं, उनको तुम इन कश्मकशों में फंसा देते हो, ठीक है? उन बेचारों की क्या गलती है? वो पहले सोचे कि यार मेरे पास हॉस्टल के पैसे पूरे लब रहे नहीं लब रहे, या खाना मैं ये काजी भाई के ढाबे के पे जो ओवर प्राइस चाय मिलती है, ठीक है, उसके मैं पैसे दे सकूंगा या नहीं, वो बैठ के सोचें कि पानी का मसला। ब्रो ये उनका काम नहीं है। रेवोल्यूशंस हमेशा एलीट्स लेके आते हैं। वन एलीट फाइट्स द अदर एलीट। सर मेरे ढाबे पे जो बंदा 90 रुपए की 90 रुपए की बैठ के चाय पी रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यार वो 90 रुपए अगर दे रहे हैं ना एक चाय के कप के लिए, ठीक है, तो वो आके उसके बाद ऐसा नहीं है कि यार वो भूखा मरने लगा है, वो 90 रुपए का खाना नहीं खा रहा, 90 रुपए की चाय का कप पी रहा है। नहीं ना, लेकिन वुड यू से कि जो तुम्हारी ऑडियंस है वो एलीट्स है? सब एलीट्स सब एलीट्स हैं, नॉट उर्दू वाला सब सब एलीट्स। सब एलीट्स, हाँ, तो सब एलीट्स नहीं ला सकते ना। सब एलीट्स ही लाएंगे, एलीट नहीं लाएगा, सब एलीट लाएंगे। नहीं ना, so इस वक्त राइट नाउ अगर तुम देखो कि जो इस वक्त भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इट्स वन एलीट फाइटिंग द अदर। बिल्कुल ठीक है। हर दुनिया में अगर तुम देखो तो जो जगह जहाँ की एलीट प्रोडक्टिव थी, वन प्रोडक्टिव एलीट रिप्लेस द अदर प्रोडक्टिव एलीट। अगर हम आज उठा के सारे लोग बाहर फेंक देते हैं, सही है, तो समवन विल टेक ओवर दैट प्लेस, राइट? व्हाट इज टू से कि वो भी इतने नॉन प्रोडक्टिव ही हो। ये लोग सिर्फ जो हमारी लीड का प्रॉब्लम है वो और कुछ भी नहीं है, वो रेंट खाना चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो सुकून करना चाहते हैं। सही है, एलीट के वो मसाइल ही नहीं है जो कि सब एलीट के हैं। हाँ ठीक है, सब एलीट के पास चलो अपना घर है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई और घर नहीं है जिसे वो रेंटल इनकम खा के अपना बसर ही गुजार रहा है। अब ही हैज टू वर्क, ठीक है, लेकिन ही इज सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है, बट ही हैज टू वर्क, और उसके उस काम के अंदर भी, ठीक है, वो खुशी से भी कर सकता है और अपनी मजबूरी से भी कर सकता है। जो एक मजबूरी वाला काम है वो कर रहा है, ठीक है, उसका कुछ ड्यूरेशन है। जो खुशी जो उसका लेट्स से कि यार वो अपनी मर्जी वाला है, ठीक है, आप उसके अंदर उसको कहो कि यार आप कौन सी चीज छोटी सी भी ना बेहतर कर सकते हो, छोटी चीज बेहतर की, उसने सोसाइटी छोटा सा उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। सब लीड क्या कर सकता है? सब लीड जॉब क्रिएट कर सकता है। सब लीड क्या कर सकता है कि यार एक बंदा टेलीनॉर में काम कर रहा है, ठीक है, अपने अम्मा अब्बा के घर में रह रहा है, टेलीनॉर में काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह आ रही है, वो एक कमरे में अपने अम्मा अब्बा का एक कमरा इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपने यार बस मैंने और नहीं लेना। अपने अम्मा अब्बा का एक कमरा इस्तेमाल कर रहा है, जिस घर में वो रह रहा है ना, वो बिजली का बिल दे रहा है ना, घर का रेंट दे रहा है ना, कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी एक इनकम है। अब वो उस इनकम को अच्छी तरीके से भी यूटिलाइज कर सकता है, या वो अपने कपड़ों पे या खाने बाहर आउटडोर खाना पीने पे इस्तेमाल कर। मैं कहता हूँ कि करो, ठीक है, लेकिन एक एतदाल में करो, एक मायाना रवि रखो। तो तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि तुम, सो आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर जस्ट सेइंग यार, जो तुम अपने सर्कल में, अपने बसात में रह के, अपने उसमें रह के तुम जो चेंज ला सकते हो भाई मेरे, वो ले आओ, और बाकी फिर जो करता रहेगा, शायद उसी दिए से दिए कोई बड़ा दिया जल। एग्जैक्टली। अब मेरा मानना ये है कि यार अगर वो बंदा जो फर्ज करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, उसने अपने 9 to 5 दे दिया, अब उस 9 to 5 के बाद उसके पास 3-4 घंटे वो एक्स्ट्रा निकाले, ठीक है, और वो सोसाइटल डेवलपमेंट की तरफ है। उसमें डेवलपमेंट में वो क्या करे? वो करे ये कि यार वो छोटा सा कोई लेट्स से ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट कर दे, तो उसके अंदर ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट करने में वो जॉब क्रिएट कर दे, वर्क क्रिएट करे, चीजें क्रिएट करे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमाए, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग के ऊपर भी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी जाए, ठीक है, तो सारे बड़े वाइड टॉपिक है, लेकिन वो करे, ठीक है, क्योंकि उस सब एलीट के पास, या आप उनको कह लें कि सेकंड टू एलीट के पास, अपर मिडिल लोअर एलीट, अपर मिडिल लोअर एलीट के पास कैपेसिटी ये है कि वो कर सकता है काम, हाँ, ठीक है, और वो जॉब क्रिएट कर। देखो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो जिस सेगमेंट की तुम बात कर रहे हो, इससे लेके एलीट तक, आई थिंक इनमें से किसी को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हक मारते हैं लोगों का। सही है, इस तरह के एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा या एक गुर्बत वाला बंदा उस नौकरी पे अगर आ जाता है पढ़ लिख के किसी वजह से, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम, राइट, लेकिन वो अंग्रेजी शायद बहुत अच्छी नहीं बोल सकता या व्हाटएवर, अगर आप क्योंकि फुल हार्वर्ड से पढ़ के या फलाने से पढ़ के या लम से पढ़ के या नस से पढ़ के फॉर एग्जांपल आप जाते हो, तो ऑब्वियसली यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, यू गोना गेट इट, ठीक है, लेकिन आप उसका हक मारते हो। वो बंदा अपनी फैमिली को पॉवर्टी से लेके आ सकता था ऊपर, जो हमारे माँ बाप ने किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसका हक मार के, और आपको उतने जो पैसे मिल भी रहे होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी 3 लाख व्हाटएवर आप कमा रहे होते हो, वो जो है वो आपके खर्चे भी पूरे नहीं कर रहा होता, आप फिर भी अब माँ बाप रेंट नहीं दे रहे होते, आप फिर भी अलहदा नहीं रह रहे होते, आप फिर भी अपने खर्चे खुद नहीं उठा रहे होते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो जिन लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत कैपिटल है या थोड़ा बहुत
वो कुछ करना कर सकते हैं तो जॉब बनाएं, जॉबें खाएं ना। इन द एंड ये सॉल्यूशन बनता है। तो यार और बस काजी भाई, दिस वाज योर मैसेज फॉर द डे। ये मैसेज फॉर द डे था। अगर आप इसके ऊपर अगर आप कहते हैं यार किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपने बात करनी है तो वो मैं और आप लंबी पॉडकास्ट है, बहुत बड़ी पॉडकास्ट है जिसके ऊपर हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिस वाज द जिस्ट कि यार मैं क्यों चाहता हूँ कि लोग बैठे बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्यों? अब आपके पास क्या, अब आपके पास मैथ्स से ग्रेजुएट किया, आप लम से ग्रेजुएट किए, यू ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, यू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी, नाउ बिल्ड दैट ब्रेन पूल, ठीक है, और कुछ साथ में मिलकर एंटरप्रेन्योरियल करें, कुछ एंटरप्रेन्योरियल कर लो, सोसाइटल कर लो, कुछ टाइप की चीज कर लो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, बट जॉब्स क्रिएट करो यार, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर ये समझें कि यार फर्ज है, हाँ फर्ज, ठीक है। तुम्हें आकिल बनाना, ऊपर वाले ने तुम्हें आकिल बनाया, ऊपर वाले ने तुम्हें रिसोर्सेज दी, हाँ ठीक है, उसका हक अदा करना, अब तुम्हें उसका हक अदा, बिल्कुल 100% मैं इस बात से हूँ। थैंक यू सो मच काजी भाई। मेरा नाम अदनान अली सिनियोटी, और मैं एक प्रोफेशनल बरिस्ता हूँ, साथ ही कैफे पे काम करता हूँ और पिछले 5 से 7 साल से यही काम कर रहा हूँ और बस कॉफी। सो मैं अभी रियलाइज किया एक छोटा सा इवन थैंक्स टू द कॉफी मिस्ट्री एंड यू गाइस डूइंग ग्रेट, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चले कॉफी पे थोड़ी बात होनी चाहिए। सो एज अ बैरिस्ता कुछ अपनी राय, कुछ बातें शेयर कर दूं। तो कैसा समझते हैं कि कॉफी के कल्चर पाकिस्तान में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किस तरीके से, किस दुरानिये या किस उस पे जा रहा है, ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना इंक्रीज हो रहा है कल्चर, खास तौर पे जब से लास्ट ईयर स्पेशलिटी कॉफी की तरफ आ रहे हैं और बहुत एक हाइप अच्छी बन रही है। इनफैक्ट बैरिस्टास की पहले कोई हमें पहचानता नहीं था, लाइक अभी मैंने आपको बैरिस्ता बताया तो आपने मेरे से नहीं पूछेंगे कि बैरिस्ता मतलब करते क्या। और सीरियसली इससे 4 साल पहले 5 साल पहले चले जाए ना तो लाइक यही सीन होता था कि लाइक अच्छा आप जॉब क्या करते हो, आई एम अ बैरिस्ता, अच्छा तो करते क्या हो, लाइक लोगों को पता नहीं था लाइक बैरिस्ता चीज क्या है। बिल्कुल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यस यही चीज है सबसे अच्छी कि आपका क्वेश्चन जो है ना कि अभी किस तरफ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे जो है ना इसका कल्चर जो है इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें, नए कैफेज ओपन हो रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं इस पे, अच्छे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अच्छी कॉफीज आ रही हैं, रोस्टरीज की तरफ जाएं तो बहुत अच्छे नाम पाकिस्तान में बन रहे हैं जो कि इससे पहले सब इंपोर्ट होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग वेरी वेरी ग्रेट। सो इंशाल्लाह हम इसको और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो कॉफी के बारे में स्पेसिफिकली आपकी पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद कौन सी कॉफी है या कौन सा बीन है जिसको आप अपना पर्सनली ज्यादा लाइक करते हैं, या आप चाहते हैं कि यार वो चीज है कैसी है जो कि पाकिस्तान की मार्केट को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वी आर मोर टुवर्ड्स द स्वीटर एंड ऑफ द कॉफी है ना स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की कॉफी है। तो आपके जहन में क्या है इसके बारे में? देखिए मेरे जहन में कॉफी है, स्पेशली अब एज अ बैरिस्टा क्योंकि सारा दिन काम ही कॉफी के साथ होता है तो पीनी पड़ती है। तो इसमें अब जो है जाके ब्लैक कॉफी स्पेशली जो आजकल हम कर रहे हैं फॉलोअर्स में पीते रहते हैं, तो ब्लैक कॉफी में लाइक करता हूँ और पीता रहता हूँ। इवन हमारी जो रूटीन एक ऐसी होती है ना, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, एक कॉफी बनाई है, ऑर्डर आया है, उसमें से वो टेस्ट करनी है एक परफेक्ट, तो इसी तरह हम पीते रहते हैं। तो स्पेशली एक स्पेसिफिक बताना ना कि यार ये वाली कॉफी माय फेवरेट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये स्पेशली हमारे लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है। तो बाकी जो अच्छा है, स्पेशली कॉफी जो करनी चाहिए पाकिस्तान में इवन अच्छा आ रहा है, और जो बीन्स हैं वो अरेबिका यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है जो कि बहुत अच्छी कॉफी है, स्मूथ है। इसमें अगर आप रोस्टिंग पे चले जाएं तो लाइट डार्क, पहले जो डार्क रोस्ट यूज होता था बहुत ज्यादा, अब लोग लाइट की तरफ आ रहे हैं थोड़ा सा, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो टेस्ट डेवलप होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए, तो लाइक मीडियम भी ठीक रहती है और अरेबिका होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोस्टा वाला वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी पीपल मोर लाइक चाय लवर्स भी ज्यादा हैं तो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब कॉफी की बात आती है तो सबसे पहले तो वो मीठा रिमूव हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो है वो अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बड़ी सिटीज में तो कॉफी बहुत अच्छी रूटीन से पी जाती है। लाइक इसको कंपेयर करें पिछले 4 साल से तो ये डबल से भी अप है।
अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेकिन अब मेरा थोड़ा सा इसके बताते हैं कि अगर आपको मास मार्केट को हिट करना है, लेकिन जो मास मार्केट को हिट करने के लिए कॉफी का जो प्राइस पॉइंट है, ठीक है, जो स्पेशलिटी कॉफी का प्राइस पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से कि आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉफी पी जाएगी, अगर आप उसको मैं देखूं इन नंबर, तो वो लेट्स से कि मरी के ऊपर, माल रोड के ऊपर कोई 40 कॉफी वाले अपना ठेला लेके खड़े होंगे। मुझे पता है वो स्पेशलिटी कॉफी नहीं है, जिससे वो बरिस्ता नहीं बना सकता, वो बरिस्ता नहीं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाएंगे बरिस्ता, लेकिन बेसिकली पी हो जाती है, ठीक है। पाकिस्तान का कल्चर क्या है, वो कहता है कि यार कॉफी पीनी है, ठीक है, और मीठी पीनी है, और गर्म उसमें बरबर निकल रहा हो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि लेट्स से कि अगर हम उसको इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, हम उसको लेके भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मास मार्केट का प्राइस पॉइंट क्या रीच कर पाएंगे कि लेट्स से कि हम लेट्स से 250, 100, 250, 200 के कप को प्राइस पॉइंट रीच हो सकता है? इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे रहे तो मे भी हो सकता है। और बाकी आपने बात की तो मरी की साइड पे, उस साइड पे लोग असल में कॉफी पीते हैं, लेकिन वो लोग ठंड से बचने के लिए, मतलब, लेकिन यहाँ पे कॉफी पी जाती है मतलब अपने आप को बूस्ट करने के लिए। सो ये भी एक डिफरेंस है बीच में। लेकिन इंशाल्लाह जो आपने 200-250 रुपए की बात की तो कोशिश करेंगे, और ये तभी होगा जब पाकिस्तान में ज्यादा जो है ना इसकी कंजप्शन बढ़ेगी, जो कि बढ़ रही है। लेकिन वही बात है कि अगर कंपेयर किया जाए ना चाय से, तो उसका वो चीज तो कभी भी नहीं आ सकती, लाइक। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में इसको जितना हो सके जो है ना वो किया जाए। बाकी स्पेशलिटी तो स्पेशलिटी है, इसके लिए और महंगी होती है, क्योंकि जहाँ पे स्पेशलिटी की बात आती है तो वहां पे हमारे जो बीन्स है ना, क्योंकि इसमें ग्रेड होते हैं, तो स्पेशलिटी में 80+ स्कोर की कॉफी यूज होती है, क्योंकि तो ये थोड़ी सी महंगी होती है नॉर्मल कॉफी के मुकाबले में, जो कि डार्क रोस्ट और ब्लेंड्स आते हैं और जिसमें अरबिस्ता मिक्स हो जाती है। तो वो कॉफी असल में मिलती सस्ती है, वो भी सस्ती तो नहीं मिलती खैर, लेकिन यहाँ के आपने 200-250 की बात की तो इतने में तो वो मिलते हैं, वो भी जाके आपको उस साइड पे। लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी की थोड़ी सी बात है, और स्पेशलिटी पीने वाला बंदा भी जो है ना वो नॉलेजेबल, और उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या पी रहा हूँ, तो वो तभी वो इतने पैसे भी भरता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई, क्योंकि स्पेशलिटी का तो मेरे ख्याल में अभी जो कैफेज हैं अराउंड 500 से कम तो कोई भी नहीं है। तो यही बात है, महंगी है, तो इसको इंशाल्लाह कम करेंगे। इंशाल्लाह रोस्ट्रीज अभी भी हैं, अच्छी ओपन हो रही हैं, लाइक लाहौर और कराची पे साइड पे हम लोग गए तो लोग काम कर रहे हैं। और हमारा इसमें बड़ा जो है ना एक मसला कि हमारे जो अच्छे बैरिस्टास, अच्छे हमारे रोस्टर्स, अच्छे हमारे जो सीनियर बंदे हैं वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं स्पेशली अगर उन तक मेरी बात पहुंचे तो मैं यही कहना चाहूंगा, उनके लिए मेरा पैगाम होगा कि अब टाइम है लौटने का। तो क्योंकि हम आपके जूनियर्स हैं, हमने आपसे सब कुछ सीखा है, तो हम आपको कहते हैं कि अब आप वापस आए पाकिस्तान में, और यहाँ पे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे ना तो वो इस चीज को बेहतर हैंडल भी कर पाएंगे, कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, और इवन ऑल्दो सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है उन्हीं के सर पे। तो इंशाल्लाह जब वो लोग वापस आएंगे तो ये ज्यादा कॉफी इंक्रीज भी होगी, कम्युनिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीनियर हैं, जो बाकी 5-5, 7-7 साल से वो लोग हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे हैं। ये ट्रेंड शुरू हो गया है इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने ये बात की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि ब्रेन ड्रेन रहा है। तो जो बंदा जिसके पास कोई भी अच्छा स्किल सेट है या कोई भी अच्छी नॉलेज है ना, क्योंकि वो आपको बाहर की एक मार्केट जो कि हाईली पेइंग मार्केट है वो पाकिस्तान से लेकर चली जाती है, और उसके लिए भी वो बेहतर है, वो समझता है कि बेहतर है कि यार मैं उधर बाहर जाऊंगा, ठीक है, मैं बेहतर कमा लूंगा, मैं अपने लिए यहाँ पे घर, रिहाइश, अपना लाइवलीहुड बेहतर कर लूंगा। मैं उस चीज को गलत नहीं करता, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नेशनलिज्म लेकर आना पड़ेगा इस चीज के अंदर। आपको इन जॉब्स को, जो कि स्पेशलिटी की जॉब्स हैं, उनकी जो कह रहे हैं कि सैलरीज भी हैं, उनको उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, ताकि आपके पास ये मार्केट ग्रो करे। तो वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। अगर आप कुछ फाइनल अपने वर्ड्स देना चाहेंगे तो ये फाइनल वर्ड्स यही है। आपने सैलरीज की बात की, बिल्कुल ऐसा ही इश्यू होता है। इवन जब मैंने खुद स्टार्ट किया था, इवन एज अ पार्ट टाइम एक कैफे में, तो मेरा भी ड्रीम यही था यार, कोई 6 महीने साल हाथ सीधे करता हूँ। और क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि यार इसका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई कॉफी नहीं पीते, बाहर जाना, दुबई जाना, सऊदी जाना, लाइक यूके ये वो। तो स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अब मैं देख रहा हूँ ना, तो अब मेरा प्लान तो बाहर जाने का बिल्कुल नहीं करता।
तो इसलिए मैंने बोला है, और वो लोग वापस आएंगे। और अभी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही है तो सैलरीज भी बहुत इंक्रीज हो रही हैं, इवन कि अब बैरिस्टाज यहाँ पे भी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। सो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि कोई नया ट्रेंड हो गए इस तरह बाहर जाए। इवन अब हमें इसको कम्युनिटी को ऊपर लेके जाना है। तो फाइनल वर्ड्स मेरे बस अपने भाइयों के लिए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सबसे राब्ता होता है, सब कांटेक्ट में होते हैं। तो अब आके वो हम में जो है ना वो करने की जरूरत है। तो उसको इंशाल्लाह हमने मिलके इसको इंडस्ट्री को और फैलाना है पूरे पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में। वजीर अहमद हसन वजीर अहमद भाई के तो गल करनी आज मैं सारे गल करनी कि मैं शुरू से मतलब मंगया कोई नहीं किसी चीज है, कोई बंगा मंगना ये लेन देन ना ना ये देखो मैंने मैं अपनी मजदूरी की थी। पत्थर सिरा टंगे, मुंडे टंगे, मतलब बड़े बड़े काम किए कि आज रक्स नहीं उन्हें ये आए इस किस्म ने काटे की मजदूरी है ना। किसा बंदे आए कंडे कपने जी, ये कंडे कपे ताना मीना नहीं है। एक गोबर नहीं सटिया किसा ने, बाकी किसा आखा पत्थर चंगना, कोई भी मजदूरी है। सारे पैगंबरों भी मजदूरी की थी, उन्होंने तहत मैं फख्र नहीं किया कि मैं जी बहु ये कम ना करना वो कम ना करना। तो मैं बड़ी खुशी ना काम किया। देखो सारे जड़े पैगंबर है उन्होंने असा की एक तरीका कार दसिया कि लकड़ियां बेचो, बाल बच्चे तक गुजारा करो, मजदूरी करो, छुट्टियां बनो, हर कम मतलब लोग करने। एक आदमी है जी मोचे न कम करना, असा उसमें बड़ा फख्र करके कहने वही ये मोची है, वही नहीं उसकी मोची नहीं आने देना, कारीगर है। एक आदमी है भांडे बनाना, वो भी आखने जी पुराना कुम्हार है, मगर वो वही सकना कुम्हार न है। एक उसमें जाब है, शुरू से पेरे दादे कम करने आए, उनकी वो शौक होती है कि यार मैं अपना ये कम कर। फिर ये कि दूसरी बात यह है कि मैं बच्चे माशाल्लाह पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के पढ़े हैं। ये है कि छोटा जरा सारे से उस 35,000 खर्च किया, तेरा कोई नौकरी लभी के अच्छा, कोई माड़ी मोटी नौकरी लभी के अच्छा, तेरे की नौकरी नहीं लभी पर नहीं लभी। आई जी फलानी जाई जी टेस्ट जी जुलाई सभा रो फलानी जाई जी यार अल्लाह करे तेरा कम ही है उठा गया जी वो भी ना एम पैसे खाने के दो वो जी 500 रुपया जमा कराई छोड़ दो नाल दरख्वास्त जमा कराई छोड़ तो तू जनाब पर्ची गए बस फिक्रिया ना कर। इस तरह फ्रॉड फ्रूड करके लोग पैसे इकट्ठे करने, ये पाकिस्तान ने अंदर कम नहीं करना चाहिए। वास्ते अल्लाह के सही भर्ती करने हो, वास्ते अल्लाह भर्ती करो। हूँ जनाब ने नेवी भी देखो तमाशा क्या बुनियाद उठे जो मामा चाचा है ना, उस मामा चाचे की भर्ती करनी। अच्छा बाहर ने बंदे की वो तो उसकी अंदर नहीं बन देने गेडे थी। मैं पहले उठे मेरी 2 दादी पुत्रियां सी, मैं रात 10 बजे 11 बजे गच्छा, मेरा भरा भी एक एयरपोर्ट उठे मैं उठे जाना होना से मेरा साला जब मैं जाना होना से तो उसके बाद मैं कहीं एक दफा मैं गया तो उन्होंने आखिर जी अंदर नहीं जा सकने जब तक कोई बंदा अंदर ना दस है नहीं हो जा सकने, यह कार्ड ना नहीं जा सकना। इतनी मतलब सख्ती है ये सख्त। सिर्फ ये आके नवाज शरीफ साहब बैठे वो अपने सदवादे बैठे, उन्हें ये ना पता कि पाकिस्तान ने अंदर को गरीब रहना जरा उसकी कोई आटे नहीं या बोरी दे छुड़िया को थोड़ा आटे ने दे छुड़िया को मकान उसी बनवाई दे छुड़िया को सारी दुनिया नहीं आपने लोगों ने मकान है। कई गरीब लोग भी ये तरह नवाज शरीफ साहब है कोई और साहब है, बड़े बड़े तकड़े लोग हैं, सालों दोनों को पैसा है, हक उन्होंने बुना के पाकिस्तान ने अंदर फैक्ट्रियां खोले, कोई आटे नहीं मिलना खोले और हर किस्म ना काम खुली सकना, लोग मजदूर लोग कम करें नौकरियां करें। यह पैसा पाकिस्तान ने अंदर बैंक ने भी जमा होना चाहिए ना, बैंक वाले इस्तेमाल करें। को गरीब आदमी मंगा करता यारो दे दो यारो चल यार महीने तक नहीं गया तो वापस ले देना या चलो इस तरह वो पैसा खंडे 12 मुल्क आगे वो राजा आगे मतलब वो मुल्क राजा मतलब इंग्लैंड दुआ अमरीका रजे फिर उनकी गरीब पैसे जमा करने उस मुल्क मतलब है अपने मुल्क नू तरक्की दो, अपने मुल्क नू अगे करो, इन्ना जड़े बच्चे की मुफ्त पढ़ाओ, एक अदारा ऐसा खोलें फंड दे फंड दें हुकूमत फंड दे
कि जी फलाना बच्चा ये पढ़ना चाहना खुशी ना उसकी 14वीं तक पढ़ाओ 16वीं तक पढ़ाओ जितने तक उन्होंने हिम्मत थी वो पढ़ाएं। तो देखो इस मुल्क की सारे तरक्की है तरक्की अभी भी तरक्की है और तरक्की हो सकनी एक सदका जारिया है उस हर आसान नहीं है। एक आदमी किसी बच्चे की पढ़ाना बूढ़ी जब तक वो कमाई खाना रहसी माल बच्चे जैसी सदका जारिया उसकी जना स्वाब पहुंचने वैसे हूं एक आदमी है मैं जी ऐसे तकरीबन 30 साल पहले नहीं गाली हूं 40 साल हो गए सन मैंने एक बंदे थोड़े जा कर्जा दिता है मैं थोड़ा जा कर्जा दिता उन्हें जब तक जो भावे 500 दिता या 100 दिता उन्हें जब तक को तुम्हारा कर्जा जो वापस ना है चित्रे तारा तुसा नेकियां लिखना से कर्जा तुसा ना वापस करसी बंदा फिर थोड़ी नेकी खत्म सही है पहली नेकी लिखना पूरी एक पढ़े लिखे बंदे भी की दस्या कि ये तुसा की फायदा कि चलो एक आदमी पैसे की ना कोई मजबूरी है उसी देना वो तुसा की जब तक वापस करना तुसा की नेकी मिलनी जैसे मेरे 4 बेटे हैं नहीं हैरान होने के जरा हमारे बेटे की नौकरी नहीं लभी असा कोशिश की थी पर बस अल्लाह ना बोला या तो हुकूमत उनकी कम करना चाहिए ना कि यार कोई गरीब आदमी आ तो यार मैं तो भर्ती कर सकता हूँ नेवी भर्ती कर सकता हूँ फौजी भर्ती कर सकता हूँ किसी इदारे कोई प्राइवेट थोड़े इदारे नहीं है पक्के इदारे हैं भर्ती कर सकता हूँ 4 मेरे बेटे हैं चले बस मजदूरी है करते हैं मैं भी कोई नहीं सोचा कि यार आपको नौकरी लभ भी सकनी अच्छी करा नहीं की बस को सोची करी गया तो हूँ सोचने ज्यादा नौकरी नहीं की कितना नुकसान मतलब ये वक्त हर कम वक्त ना जवानी बंदा 30-40 साल 50 साल वो नौकरी कर सी उसकी पेंशन हो गई सी उसकी फायदा हो जाना जिला बंदा पहुंच जाने 40-45 साल नहीं यार बड़ा नुकसान किया नहीं यार नौकरी करना मुझे कोई फायदा हुआ जी मैं सोचना ना हूँ मेरे किस्मत ये कि लिखा जरा कि कुछ ने मजदूरी कुछ ने क्या कोई तो हूँ मैं सोचना यार मैं नौकरी करने में पेंशन का पाया मगर क्या ऐसी कोई बेहतरी है इमरान साहब भी जड़े उन्होंने भी मेहरबानी है कि उन्होंने उठन साथ उन्होंने 2-3 बाधा ने सीटा पर एकदम जनाब उन्हें छाल मारी देखो जी 1 साल बाद चीज महंगी होनी सी तो इतना जुलम किया एक हफ्ते चीज महंगी सी मुड़ी 2 हफ्ते फिर महंगी सी फिर 3 हफ्ते फिर महंगी सी 4थे हफ्ते फिर महंगी सी अरे पाकिस्तान ने जोड़े को जुलम है इतना जुलम है इतनी महंगाई है मैं तो ना सादी आटा सस्ता है चीनी सस्ती है जी सादी चीजें सस्तियां बंदा चटनी नाली रोटी खाई छोड़े आदमी मगर जड़े लोग 20-30 लोग है उनकी तो कदे 1 लाख रुपया किलो चीज है तो चाइन उन्हें तो पर्दा है नहीं पैसे महंगी है या सस्ती मुश्किल है गरीब आदमी ने चलो बस थोड़ा जा गुजारा हो जाए